होस्ट एंड मैं जरा ये थोड़ी सेटिंग कर लूँ. हम 1 मिनट में शुरू कर लेते हैं. अभी 2:33 एंड 2:34-35 पे शुरू कर लेते हैं. Sure. We have Miss Saira. I think Miss Farah is left to join us. फराह को भी देख लो. Ask her to join us. एंड 1 सेकंड के लिए मैं जरा कैमरा ऑफ कर रहा हूँ जस्ट टू सेट मैं इंटरनेट का वो शिफ्ट कर रहा हूँ कनेक्शन. All right. ओके, मेरी आवाज क्लियर है बिल्कुल? जी sir, clear है. I hope other Okay, people good. can also hear it. हाँ. ठीक है, वी आर ऑल सेट. जैसे ही मोहित आपने जब भी मीटिंग शुरू करनी हो आप कर लेना. जी sir. जैसे Sir, ही बस हमारे सिर्फ Miss 20 Farah का पार. wait है, तो we'll start in 30 seconds inshallah. ऑलराइट, ओके. आजकल सर आई गेस फाइनल एग्जाम्स चल रहे हैं यूनिवर्सिटी के. फराह का कुछ नेट का प्रॉब्लम ना आ रहा हो. वो भी एकदम मेरा भी बिल्कुल ठीक था, एकदम डिप हो गया. अच्छा अच्छा. नहीं ये आजकल भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, ये भी आप लोग हैं? हमारा ये HEC ने ये कहा है कि जो फैकल्टी है वो तो घर से ही पढ़ाए सारा कुछ. दे शुड नॉट कम. लेकिन हमारा जनरली वर्क फ्रॉम होम है, लेकिन कुछ एसेंशियल सर्विसेज हैं उनको आना पड़ता है. फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रार ऑफिस है, एडमिशंस ऑफिस है, एग्जामिनेशन ऑफिस है. इस और ऑफिसेज हैं जरूरत है वो लाजमी आता है. बाकी जो वर्क फ्रॉम होम कर सकता है वो वर्क फ्रॉम होम कर लेता है. तो दैट्स हाइब्रिड मोड पे है इस वक्त. सही 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 सही, बिल्कुल ठीक है. So how are the things at your end? आपका उमर, how are the things at your end? सर बस ऐसे ही है, क्योंकि सिंस द लॉकडाउन स्टार्टेड हमने भी अपना ऑफिस क्लोज कर दिया था और वो स्टार्टेड वर्किंग रिमोटली. और बाकी जो चैलेंजेस सारों को थे वही हमें भी थे. तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इट वाज कोप्ड वेल और रिमोटली काम चलता रहा. जनरली इट वाज ओके. बिजली के भी इश्यूज नहीं है, इंटरनेट भी चलते रहे लोग, तो मतलब दैट वाज ओके. तो काम चलता रहा. So I think we have Miss Farah. We can start now. Okay, चलो. Okay, wait. First of all, thank you very much everyone to join us here for the Business Leader Engagement Talk Initiative. We have attendees from the University of Management Technology as well as from the eSparks. I would like to introduce the attendees from UMT first so that you can get an idea about who is attending current session today. We have Director Corporate Linkages and Placements, Mr. Khalid Naki, who is a corporate Olympic champion and an experienced enterprise management professional, having a 30 years of diversified international experience in multiple industries, looking into the various asset classes. He is also a Chief Transformation Officer at an Innovation Capital Development Forum, ICDF, which is a think tank involving academia, industry, and government professionals to steer on the academia industry potentials. He's also heading the 4 departments at the moment of University of Management Technology. He's the head of corporate linkages and placement, as I said, and he's also heading the department of Office of Corporate Linkages, Office of Alumni Relations, Office of Forums and Events, and Office of Participant Affairs. He's been at UMT since 5 years and above.
And we also have another attendee, Ms. Saira Iqbal Khan. She is the most senior team member of Office of Corporate Linkages and Placement, currently working as a lead DevOps. And she's also a chief disruption officer at an innovation capital development forum I just talked about. Then the third one is Ms. Farah Farouk. She's our digital leader and portal administration. She's working as a hub between the students and industry, actually managing the portal on regular basis, sharing the vacant posts as well as leading lead generation for the industry. Then I myself, I am the project lead for special assignment at OCLP. I'm majorly responsible for signing off the official MOUs from UMT and industry perspective, and also responsible for the placement of UMT students and directly coordinating with the industry, looking into the industry and academia linkages. This is from the UMT. I would now like to introduce the professionals from eSparks Consulting. We have Mr. Umair Zaman with us. He's the CEO of eSparks, having a decade of experience in his field. Majorly, they are looking the web portals and management system for the diversified industry. Their strength includes the web designing and web development, mobile apps, and e-commerce solutions. Once I leave the house open to Khalid Naki Saab, who's the director of CLT, he will then discuss the business leader engagement initiative. Then Mr. Zaman can introduce himself more and talk about his company and the other perspective. We also have Ms. Aisha Anjum, who's the HR manager at eSparks. And I wonder if Ms. Kola Fazan, who's a senior HR professional, has joined us or not, as Mr. Mar has given us a name of her as well. She has just joined now. She just joined. So these are the attendees for the current session. I would now leave the house open for Mr. Khalid Naki to take it forward from here. Thank you very much. Thank you, Mohit. Thank you very much for the nice introduction and for arranging this session. Business leaders engagement is as important as any other thing in the world of business, in the world of work. तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपका and I'm very happy to be part of it. Umair Zaman sir, आपसे because we are going to share it with the students also, so we'll keep it bilingual ताकि थोड़ा सा आसानी हो समझने में. ये जो pre-COVID period था, फिर COVID आया and post-COVID, इस पे आपकी क्या thoughts हैं, क्या outlook है? How you see things going forward once the market opens and things are settled down? थोड़ा सा आपका मुझे view चाहिए होगा. And before that, I would like you to give us a short brief about your company and its activities. We have seen your PowerPoint presentation and your work areas. थोड़ा सा आपकी ज़बानी भी पता लग जाए तो it will add value to it. So please, Umair sir. ठीक है. Khalid sir, first of all, thanks for having us on board and thanks for giving us an opportunity to express our views to the UMT, because this is something that I always wanted to, discuss with universities, because since I was a student in the past, और मैं देखता था कि as a student मेरी thoughts क्या होती थी, और जब मैं industry में आया तो उसके बाद आने के बाद थॉट्स कैसे चेंज करनी पड़ी और कौन सी ऐसी चीजें थी कि that I learned the hard way. So the point is कि I really wanted to help the students and even the universities to to set their directions. आवाज आ रही है आपको? हम वीडियो ऑफ कर लेते हैं. वीडियो ऑफ कर लेते हैं मेरे ख्याल में. एक सेकंड. Video. Actually, video on रखना भी important है because we're going to share this with the students. So I think आपकी आवाज freeze हो रही थी बीच में, बस थोड़ा manage कर लें इसको. नहीं, मुझे I am okay if you are okay, तो मतलब मुझे कोई issue नहीं है. तो बीच में आता रहेगा, net speed drop होती रहती है, upload speed. ठीक है. So we live with it. So it's important that we record it properly. Please carry on. ठीक है. अच्छा, regarding my company, we started in 2015
Initially I was alone, then I hired a small team and I started as a freelancer, then I raised my company, and then I started hiring team members. So is tarah karte karte alhamdulillah now we are around a team of 20, and we have several departments that deal with e-commerce, that deal with mobile apps, that deals with digital marketing, that deals with digital sales. So these are various departments that usually normally software houses have. इसके अलावा ये है कि मतलब we are still expanding, we still have need for resources, for skilled resources. So we are always on a hunt of some good resources जो कि who have good technical skills as well as who have good attitude. ठीक है, तो ये है कि इस तरह this is how it goes. What was your second question? I'm sorry, I missed that part. The second part was because आजकल का buzzword is pandemic, pre-COVID, COVID, and post-COVID. How things have changed at your end, and what are your thoughts going forward? ठीक है. अच्छा, ऐसा है कि since I am from an IT industry, so I can give you an IT perspective. ठीक है. मैंने ये observe किया है कि pre-COVID it was okay, especially within Pakistan, जो एक normal routine में चल रही थी चीजें, that were growing, and IT industry is expanding in Pakistan. So that was something के जो कि already चल रही थी. लेकिन since the COVID started, I saw a rise in the IT services. The reason was that people were dependent on all these मतलब IT engagements, और यहाँ पे जो physical contact था, physical जो आपकी जो कोई ऐसी एक्टिविटी थी जिसमें रिक्वायरमेंट थी कि आपने फिजिकली कहीं जाके कोई एक्टिविटी करनी है, वो चीज है वो तो हो गई थी फ्रीज. मैं देख रहा था कि इंस्टाग्राम, आई गेस इंस्टाग्राम जो है उसने 3 साल के अंदर कोई मेरा ख्याल है 1 मिलियन फॉलोअर्स अपने उनके जो यूजर्स थे वो बने थे, और जूम ने जो है वो सिर्फ अपने कोविड के दौरान ही 1 मिलियन अपने यूजर्स जो है ना वो बना लिए हैं. ठीक है, सो दिस इज द रीजन के ये ड्यू टू पेंडेमिक. और मैं ये देख रहा था कि बहुत सारे ऐसे लोग जिन लोगों के पास टाइम नहीं था कि जी हम किसी और को पढ़ा सकें, बता सकें, अब वो लोग भी सारे अवेलेबल हैं, ओपनली अवेलेबल हैं कि आप आए, हमसे बातें करें, हम सेशंस करते हैं. तो आई हैव सीन अ चेंज इन एवरी फील्ड, और उसमें आईटी का बहुत रोल है. अब जूम अगर आप देखा जाए तो मतलब अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा तो जूम कैन नॉट परफॉर्म. सिमिलरली इन ई कॉमर्स नाउ थिंग्स हैव स्टार्टेड चेंजिंग. पाकिस्तान में लोग ज्यादा ई कॉमर्स को नहीं फोकस करते थे बिकॉज उनकी शॉप्स चल रही थी, वो देवर मतलब जो एक कन्वेंशनल वे था उसके साथ चल रहे थे. लेकिन नाउ वी स्टार्टेड गेटिंग क्वेरीज फ्रॉम मेनी कंपनीज लोकली के आप आए और हमें ऑटोमेट करके दें हमारा ई कॉमर्स सोल्यूशन. ठीक है, तो दिस इज हाउ वी हैव सीन द चेंजेस जनरली पोस्ट इन दिस पेंडेमिक एरा. आप आगे क्या देखते हो गोइंग फॉरवर्ड? लेट्स से वंस दिस पेंडेमिक इज ओवर, थिंग्स आर बैक टू नॉर्मल, तो क्या हम वापस अपने सिनेरियो पे आ जाएंगे या देयर विल बी सीरियस चेंज इन आवर एटीट्यूड एंड बिहेवियर टुवर्ड्स ऑल द रिलेशनशिप्स वी हैव? जैसे हम ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर पे जाएंगे या हम ई कॉमर्स पे आदत पड़ जाएगी, वी विल बी यूजिंग दैट लॉट मोर. देखिए, आई डोंट सी इट एंडिंग सून. पहली बात तो ये है क्योंकि ये अब एक चीज आ गई, और अभी मैं WHO की रिपोर्ट्स भी पढ़ रहा था. अभी यूएस में दोबारा एक आई गेस के इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है जिसके अंदर उन्होंने कहा कि ये दोबारा जो है स्पाइक एक आ रही है. अब ट्रम्प ने भी मास्क पहन लिया फाइनली. ठीक है, तो ये है कि दिस वॉन्ट एंड सून. अब द पॉइंट इज कि लोगों ने इन 3-4 महीनों में अपने आप का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो काफी एनालिसिस किया है. उसमें इनकी कंप्लीट जो जिंदगी है ना वो अब चेंज हो गई है. अब ये लोग घर बैठ के ये सोच रहे हैं कि हमने मतलब लेट्स से कि उसमें एक एस्पेक्ट ये है कि फैमिली के साथ टाइम कैसे गुजारना है. दिस इज वन एस्पेक्ट. उसके अलावा आपने अब अपने जो आपका जो भी कारोबार है, जो आपकी जो भी बिजनेस है, उसके आपने डायरेक्शंस कैसे चेंज करनी है कि यू कैन मैनेज और विद दिस पेंडेमिक. एंड लोगों को ये तरीके भी अब पता चलना शुरू हो गए कि नहीं, हम कन्वेंशनल वे से हट के हम और तरीकों से भी हम अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं. ठीक है,
सो एक तो ये कि ये दिस इज नॉट एंडिंग सून, और लोगों को अब लोग जो है ना पोस्ट पेंडेमिक अगर आप बात करें तो लोगों की अब डायरेक्शन चेंज होंगी, बिजनेस पर्सपेक्टिव चेंज होंगे, बिजनेस अप्रोचेस चेंज होंगी इसके अंदर। इवन आप यूनिवर्सिटीज को देखें, अब ये मैं बहुत सारी लोकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को देख रहा हूँ कि अब वो लोग ऑनलाइन, जिनको जूम का नहीं पता था, वो सारे जो हैं वो देखने के लिए हम ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। अब इसमें ये भी है कि देखें, हो सकता है कल को स्कूल या यूनिवर्सिटी माइट थिंक कि यार हमें यूनिवर्सिटी में रखने की क्या जरूरत है, स्टूडेंट्स को घर में पढ़ाएं और एग्जाम यूनिवर्सिटी में आगे लिए करें आप। दिस इज क्वाइट पॉसिबल। 2004-2005 में ना और 2003 में स्पेशली स्टडीज आनी शुरू हुई कि ऑफिसेज खत्म हो जाएंगे और इट विल बी अ डिफरेंट वर्किंग सिनेरियो। तो उस वक्त लोगों को समझ में नहीं आता था ये कैसे खत्म होंगे, क्या होगा, हाउ द वर्ल्ड विल शेप अप, लोग काम कैसे करेंगे। और उस वक्त बातें होती थी, आर्टिकल छपते थे, काफी इस पर रिसर्च भी हुई और बहुत सारे कमेंट्स आए। और हमने देखा ये कि 2020 आया है और इसने आके एकदम गेम चेंज कर दी। ये वाकई 2020 हो गया कि कोई 20 ओवर में मैच ही चेंज कर दिया इसने। बिल्कुल ऐसे ही है। थिंग्स हैव चेंज्ड। तो पोस्ट पेंडेमिक भी आप ये सिनेरियो देखते हो। अच्छा, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब इस पे जो नजर आता है, बहुत सारी कंपनीज को एक और मजा भी लग गया है कि वर्क फ्रॉम होम में हमारे ऑफिस की कॉस्ट खत्म हो जाती है। यू नो, एक एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, ऑफिस की बाहर वाले खर्चा है। तो व्हाई डू हैव ऑफिस जब लोग घरों से काम कर सकते हैं। और उससे भी सोच चली गई है। प्लस एक कन्वीनियंस फैक्टर बिल्ट हो गया हुआ है कि आप अपने मोबाइल पे बैठे हुए होते हैं, ये खरीद लिया वो खरीद लिया, वेदर यू नीड इट और यू डोंट नीड इट, लेकिन पीपल आर बाइंग। अच्छा, एक जो गोइंग फॉरवर्ड अब ये है कि हमें फ्यूचर लीडर्स भी बनाने हैं, बच्चों को ट्रेन करना है, पढ़ाना भी है, हैंड्स ऑन स्किल्स भी देनी है, और उसके बाद ताकि वर्ल्ड ऑफ वर्क में आके वो आपकी तरह जिससे माशाल्लाह जिससे आप सक्सेस पाथ पे गए हो। एंड आई थिंक इट्स लकी टाइम फॉर ऑल द ई-कॉमर्स थिंग्स बिकॉज वो आपका एक कोर है एंड यू हैव बीन माशाल्लाह उसके बेनिफिट्स आप जैसी कंपनीज को तो बहुत ज्यादा हुए। वी वर थिंकिंग कि अब हमें शायद थोड़ा सा अपना रोड मैप फॉर ग्रेजुएटिंग अ स्टूडेंट भी चेंज करना होगा। फॉर एग्जांपल, इसको जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में ऑलरेडी है co-op program whereby industry and academia they work together in grooming a student, which means के 4 साल की अगर डिग्री है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की या जो भी है, उसमें 3 साल उसने अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ा, 1 साल जाके नौकरी की उसने किसी भी कंपनी में अपने डोमेन की, एंड देन ही कम्स बैक और आके अपना 4था साल जब पढ़ता है तो उसको पता होता है कि यार कंपनी में काम क्या होता है और क्या चैलेंजेस हैं, और फिर यहाँ पे आके रिसर्च भी उसके हिसाब से करता है, अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी उस हिसाब से करता है, और वो एक अच्छा ग्रेजुएट बन के निकलता है। एट द सेम टाइम जो इंडस्ट्री है उसको जीरो ट्रेनिंग टाइम, जीरो डाउन टाइम, वो अगर उसके पास फॉर एग्जांपल जॉब्स ओपन होती हैं तो वो लॉजिकल चॉइस भी होगा कि इसको हमारा पता है चीज़ों का, एंड ही कैन क्विकली अडेप्ट एंड एडजस्ट इन आवर एनवायरनमेंट, हमारा काम शुरू हो जाएगा। तो इस रोड मैप पे भी हम लोग इवेल्युएट कर रहे हैं। तो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? अगर हम कोऑप प्रोग्राम पे जाते हैं तो आप क्या समझते हो, आपका क्या आउटलुक होगा? डू यू थिंक इट मेक्स सेंस और जाना चाहिए इस पे? विल इट ऐड वैल्यू टू योर बिजनेस? विल इट हेल्प यू इन क्विक ग्रोथ? बिकॉज अभी ये लो टच इकोनॉमी में एंटर हो गए हैं जहाँ पे सब डिजिटल है, तो एकदम अपना स्केल अप करने की बड़ी सख्त जरूरत होती है कि विद इन 3 days यू शुड बी एबल टू स्केल अप। तो कन्वेंशनल तो नहीं रही अब चीजें, तो उस पे व्हाट आर योर थॉट्स? ठीक है, अच्छा मेरी थॉट्स थोड़ी सी इससे डिफरेंट हैं। वो इसलिए कि एक तो प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ना, दे आर नॉट वेल ट्रेन्ड, ठीक है, टू अडॉप्ट द इंडस्ट्री इंस्टेंटली। होता ये है कि एक ग्रेजुएट भी जब आता है, 4 साल पढ़ के भी आता है, ठीक है, उसको हमें टेक्निकली भी ट्रेन करना पड़ता है और कई दफा उसके सॉफ्ट स्किल्स भी हमें ट्रेन करने पड़ते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे भी दूंगा। देखें, ये एक सीएस बैकग्राउंड का एक बंदा होता है जो कि मैं कहता जी मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ने आया हूँ। समहाउ अब ये नहीं पता कि कहाँ से आती है इसकी माइंड में, लेकिन शायद उसका माइंडसेट बना ही ऐसे होता है, वो शुरू से ये माइंड बना के जाता है कि जी मैं तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग करने, बाकी सब्जेक्ट्स तो मैं पास होने के लिए पढ़ता हूँ, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, वो सारे सब्जेक्ट्स में स्टूडेंट्स को ये समझाता हूँ कि वो सारे सब्जेक्ट्स आपकी इंडस्ट्री में काम आ रहे होते हैं। आपकी साइकोलॉजी काम आ रही होती है, आपकी बिजनेस स्किल्स काम आ रही थी, आपकी बिजनेस राइटिंग काम आ रही थी, आपकी इस्लामियात भी काम आ रही होती है,
आपके ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो आपके कोर्स होता है वो काम आ रहा था, यू बिकॉज यू आर मतलब एक्टिंग एज एन इंडिविजुअल, ठीक है। तो एक तो चीज ये है कि ये चीजें जो है लोगों की बहुत वीक होती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये है कि जो आप कह रहे हैं कि 1 साल का उनको इंडस्ट्री एक्सपीरियंस दीजिए, आई थिंक 1 साल इज नॉट सफिशिएंट कि वो इंडस्ट्री को सही तरह समझ सके, ठीक है। इंडस्ट्री, फिर उसमें दूसरा प्रॉब्लम ये भी आ सकता है कि क्या इंडस्ट्री भी ऐसे वेंचर्स के अंदर इंटरेस्टेड है कि नहीं, क्योंकि जब भी इंडस्ट्री के अंदर आप किसी बंदे को इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, उसका टाइम लगेगा, उसके उस कॉस्ट लगेगी उसके ऊपर। क्या इंडस्ट्री इज आर दे विलिंग टू इन्वेस्ट ऑन अ स्टूडेंट ऑन व्हाट टर्म्स, ठीक है। ऑन द अदर हैंड मैं ये कहूंगा, क्योंकि एक स्टूडेंट आपके पास चल रहा है, आप लास्ट 2 सेमेस्टर्स के अंदर हर स्टूडेंट के अंदर उस वक्त देखें कि मार्केट डिमांड क्या है। फॉर एग्जांपल आई वर्क इन Magento, ठीक है, इट्स एन ओपन सोर्स ई कॉमर्स सोल्यूशन। अब Magento के डेवलपर्स पूरी दुनिया में थोड़े हैं, शॉर्टेज है, उसकी वजह से हमारा टर्नओवर बहुत हाई है, ठीक है। हमारे यहाँ पे डेवलपर्स आते हैं, हमें उनको रिटेन करने के लिए मतलब हमें समझ ले कि आसमानों जितनी सैलरीज हमें देनी पड़ती हैं, पर्क्स देने पड़ते हैं, उनको ख्याल रखना पड़ता है, उनसे हम जिसे कहते हैं ना कि एक प्यार से आप रखते हैं, क्योंकि आपके पास चीज लिमिटेड हो तो फिर आप उसका ख्याल रखते हैं, ठीक है। तो व्हाई नॉट कि यूनिवर्सिटी कहती है लास्ट सेमेस्टर में कंपनी के पास जाती है कि आपकी नीड क्या है, ठीक है। आपको हम कहते हैं हमें Magento के 10 रिसोर्सेज फॉर एग्जांपल चाहिए, आपको लाहौर में ऐसी बहुत कंपनी मिल जाएंगी जो अभी Magento के रिसोर्सेज हायर कर रही हैं। आप उनसे कि ठीक है हम 6 महीने में आपको Magento का बंदा ट्रेन करके देते हैं, आप ये देखें। और बाय द एंड ऑफ 4th ईयर फाइनल रिजल्ट के साथ उसको, उस कंपनी को वो पूरी शीट चली जाए कि ये हमारे रिसोर्सेज है, इसका ये स्किल लेवल है, हमने इसको Magento में ट्रेन किया है और इसका ये सक्सेस स्कोर है। इसकी सर्टिफिकेशंस भी होती हैं, आप इवन आप सर्टिफिकेशंस ऑफर करते हैं, आप उनसे कहनी कि जो स्टूडेंट सर्टिफिकेशन कर लेता है उसको लेट्स से 10 एब्सोल्यूट मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो वो जैसे ही मार्केट से निकलेगा उसको पता होगा मैंने क्या करना है, वो सीधा उस मार्केट में जाएगा। सेम गोज फॉर अदर टेक्नोलॉजीज, मतलब रिएक्ट है, नोड है, एंगुलर है, जेएस फ्रेमवर्क बहुत हाई इन डिमांड है। मैं भी कल ही मुझे मेरा एक कुलीग बता रहा था कि एफिनिटी दे आर हायरिंग 350 रिसोर्सेज फॉर C++। ठीक है, तो अब ये कहाँ से नीड पूरी होनी है हमारी ना, नीड नहीं पूरी हो रही जो सॉफ्टवेयर हाउसेस की है, उसकी वजह से इंटरनल भी खींचातानी चल रही है कि आपके जो दूसरे सॉफ्टवेयर हाउसेस लोग जो है ना वो खींच रहे हैं, उन्होंने तो नीड पूरी करनी है। तो आईटी इंडस्ट्री का वो प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, एक और प्रॉब्लम फिर ये है कि हमारा सेल्स का भी काफी इशू है। अब आपके वहां पे मैनेजमेंट की भी इशू पढ़ाते होंगे कोर्सेज, तो अब एक बच्चा जो ग्रेजुएट सेल्स के हुआ है उसको नहीं सेल्स करने आती है, दे डोंट नो अबाउट डिजिटल सेल, दे डोंट नो अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। अब वही अगर आप इंडस्ट्री से पूछ के आप उनको वो कोर्सेज करवा देते हैं 6 महीने के, ठीक है, तो वो दे माइट बी एबल टू परफॉर्म बेटर, ठीक है। एक और प्रोग्राम ये है कि मेरे कुछ सॉफ्टवेयर हाउस में हमारी डिस्कशन चलती रहती हैं, तो हमारा पर्सपेक्टिव ये है कि इन केस अगर वो नहीं कर सकते तो हम आफ्टर ग्रेजुएशन हम कुछ प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करा सकते हैं जो कि हम लोगों को ट्रेन करें इन सर्टेन टेक्नोलॉजीज, ठीक है। वो होंगे जो कि यूनिवर्सिटी से अलग होंगे, लेकिन और ये कुछ लोग कर भी रहे हैं। वो कहते हैं कि आपको ये टेक स्टैक चाहिए, ठीक है, गिव अस 6 मंथ्स, और वो पेड होती है, वो स्टूडेंट एक एडिशनल पे करता है उसके ऊपर, ठीक है। उसमें मेरा कंसर्न सिर्फ ये कि स्टूडेंट 4 साल पढ़ने के बाद फिर एक पढ़ाई के अंदर घुस गया और वो फिर पे कर रहा है। तो व्हाई नॉट यूनिवर्सिटी के अंदर ही आप एक इलेक्टिव कोर्स उनको ऑफर करवा देते हैं, ठीक है, जो कि इंडस्ट्री के ही लोग आगे पढ़ाते हैं या आपके इन हाउस टीचर्स भी कहते हैं ट्रेंड है तो वो पढ़ा लेते हैं, लेकिन उसको एक ट्रेन करके सर्टिफाई करवा के निकलवाते हैं। अच्छा, ये बताएं, वेरी नाइस, थैंक यू फॉर वेरी कैंडिड कमेंट्स। अगर सपोज आपकी C++ कभी भी आई थिंक डिमांड से आउट नहीं होगा, हालांकि दुनिया बहुत आगे चली गई है। एफिनिटी से हमारा है लिंकेज, एंड ठीक है, आई विल फाइंड आउट कि वो ऐसे क्या चीज करने जा रहे हैं। एनीवे, तो मूविंग फॉरवर्ड, जो फॉर एग्जांपल आपको 2-3 कोर्सेज आप चाहते हो बच्चा ये अगर इसको आते हो तो ये हमारे लिए प्रोडक्टिव होगा, राइट? अच्छा, अगर हम 3 साल का जो उसका रोड मैप बनाते हैं उस पे हम उन कोर्सेज को बीच पे इंसर्ट कर देते हैं, लेट्स से सेमेस्टर 5 एंड 6 में हम उसको उसके ऊपर एक स्किल डेवलप करा देते हैं, और फिर आपसे हम कहते हैं कि ये इसने 6 सेमेस्टर पढ़ लिए हुए हैं, ये कोर्सेज पढ़ लिए हुए हैं और ये लैंग्वेजेस या
ओपन सोर्स में तो मजेंटो है, ठीक है, और हर सॉफ्टवेयर हाउस का अपना आउटलुक होगा, लेकिन ई कॉमर्स इस वक्त जरा एरिया ऑफ फोकस है, तो उसके ऊपर आपके पास वो आ जाता है, तो विद इन 1 वीक्स टाइम आपका कल्चर समझ लेगा एंड ही बी प्रोडक्टिव, और 1 साल वहाँ काम करेगा तो उसको पता लग जाएगा कि मुझे कैसे इंटरेक्ट करना है, बॉस से कैसे बात करनी है, कोलीग से कैसे बात करनी है, एंड आपको वो कंट्रीब्यूट भी कर रहा होगा, और ही विल नॉट बी अ डेड रिसोर्स फॉर यू, बेसिकली वो अपनी फिनिशिंग टचेस कर रहा है, एंड देन ही कैन कम बैक, और जब वो अपना 4th ईयर कर रहा होगा, लास्ट 2 सेमेस्टर्स, तो उसमें उसका जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होगा उसमें भी सेंस होगी, जो उसकी बाकी जो एजुकेशन होगी उसमें काफ़ी अवेयरनेस होगी अबाउट द डोमेन जिस पे जाके उससे आगे काम करना है। कल हो सकता है आपकी ऑफिस में नौकरी ना हो तो ही विल नॉट जॉइन यू, लेकिन एक स्किल उसके पास आ गई एंड ही विल जॉइन समबडी एल्स, और कुछ पता नहीं होता आजकल तो कि मैं भी जो मेरे पास मैगजीन्स आते हैं मैं देख रहा होता हूँ, हर दफ़ा नई चीज़ आ रही होती है, और बाय द टाइम ही ग्रेजुएट्स हो सकता है कि वो डोमेन का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाए। जिस तरह पाइथन ने हर चीज़ आपकी गोद में डाल दी है, लाइब्रेरियाँ बना बना के हर चीज़ की, और इसी तरह जूम आया, जूम की जो मार्केट वैल्यू है, इट इज़ मोर देन 7 टॉप एयरलाइंस ऑफ द वर्ल्ड टुडे विद इन 2 मंथ्स। इतनी बड़ी डिसरप्शन आ गई इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल गेन्स। तो मूविंग फॉरवर्ड, अगर एक बच्चे को उस सॉफ्टवेयर का और उस चीज़ों का पता होगा जो आपकी कंपनी को चाहिए, प्लस उसकी कॉन्सेप्चुअल एबिलिटी इतनी अच्छी डेवलप हो जाएगी जब वो वापस आके पढ़ेगा कि आप ही की जब डोमेन में एनहेंसमेंट आती है या चेंज आता है या डिसरप्शन आती है या कोई और चीज़ आ जाती है, जैसे जूम आया बना बनाया हुआ, इस वक्त बना बनाया हुआ आपको आर्किटेक्चर पूरा मिल जाता है, आपने अपनी कंपनी के नाम डालना है, प्रोडक्ट की लिस्ट डालनी है, रेस्ट द प्रोग्राम नोज व्हाट टू डू, यू डोंट रियली नीड प्रोग्रामर्स और डेवलपर्स। दुनिया तो सब जा रही है कि जैसे हम ड्राइव थ्रू के थ्रू मैकडॉनल्ड्स से बर्गर लेके निकल जाते हैं कि ड्राइव थ्रू शॉपिंग दे दो लोगों को, अब ई कॉमर्स है, अब टूल्स बन रहे हैं, देयर आर कंपनीज आई नो जो उन चीज़ों पे काम कर रही हैं कि हम टूल्स बना के दे दें। अब गूगल ने फॉर एग्जांपल जूम आया, सब आया, माइक्रोसॉफ्ट का भी अपना है, स्काइप हिस्टोरिकली था, स्काइप हैज गॉन फ्रॉम बैड टू वर्स। मैंने बहुत यूज किया लाइफ पे, लेकिन अब मैं आई हेट टू यूज स्काइप नाउ। लेकिन क्या है कि एकदम गूगल भी लेके आ गया और वहां से आप कनेक्ट करके कर लें, लेकिन गूगल की अभी वो परफॉर्मेंस नहीं है मेरे एक्सपीरियंस में जो जूम की है। व्हाट आई एम सेइंग इज कि थिंग्स आर चेंजिंग सो फास्ट कि सब्जेक्ट मैटर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बच्चे को बड़ी जरूरी होनी चाहिए विद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन द डोमेन रिलेटेड आईटी एंड सॉफ्टवेयर स्किल्स या जो भी चीजें हैं। प्लस ऑफ कोर्स ही शुड बी एबल टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ इन in English language with nice pleasing personality, और जिससे आपको भी मजा आया कि अच्छा एम्प्लॉई आया है, and then you can send him to the market also कि जाओ जाके सेलिंग करो, कंपनी को रिप्रेजेंट करो, he goes as an ambassador। तो एक बच्चा जिसकी कॉन्सेप्चुअल स्किल अच्छी है, टेक्निकल स्किल भी उसने कुछ कर ली हुई थी अपने एकेडमिया में, आपके पास आके मजीद मजबूत हो गया और वो कम्युनिकेट भी कर सकता है, उसकी पर्सनैलिटी भी अच्छी है, ड्रेस कोड भी अच्छा है, एंड ही नोज हाउ टू टॉक। और तो आप उसको भेजना चाहोगे, वो बहुत सारा बिजनेस लेके आ जाएगा, क्योंकि आगे टेक्निकल टीम होगी तो टेक्निकल से बात कर लेगा, अगर कोई मार्केटिंग टीम होगी मार्केटिंग की बात कर लेगा, बिकॉज कॉन्सेप्चुअली इज क्लियर। और बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं जो कि फिर आपका ध्यान भी लेते हैं कई दफा, दे रेज द बार, और क्योंकि कॉन्सेप्चुअल स्किल अच्छी उसकी होगी और एक डोमेन नॉलेज अच्छी होगी और उसको उस वक्त की टेक्नोलॉजी क्या अवेलेबल है वो भी उसके पास होगा। तो हम लोग जो, मैं आपको अपनी थॉट लाइन बता रहा हूँ कि जिस बेसिस पे हम सोच रहे थे इस प्रोग्राम को करने का, एंड वी वांट टू प्रोसीड विद दिस प्रोग्राम। सिर्फ ये कि बाय टॉकिंग टू पीपल लाइक योरसेल्फ जो माशाल्लाह एक सक्सेस ट्रैजेक्टरी है, और आपने देखा फिर वो अल्लाह मियाँ सबको मौके देता है, देयर आर अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरीबडी। अब बहुत अच्छा मौका है फॉर योर टाइप ऑफ बिजनेस जिसपे वेबसाइट है, अब वो अमेजोन का आ गया, फिर वो और इतनी सारी कन्वीनियंट फैक्टर्स आ गए। पहले तो वेबसाइट आप जब तक बन नहीं जाती थी पता नहीं लगता था, अब तो वर्डप्रेस पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप वाली कहानी आ गई। तो इसी तरह बहुत सारी चीजें अब आईटी में जो बड़ी कंपनीज हैं उनको सर्वाइवल का बड़ा चैलेंज होता है, तो दे आर, और गूगल क्या कर रहा है, गूगल तो चीज बना के मुफ्त में बांट देता है, इट्स ऑल फ्री ऑनलाइन, डाउनलोड, स्टार्ट यूजिंग इट, नो प्रॉब्लम। लिनक्स है बाकी,
तो व्हाट आई एम सेइंग इज ये हमारी थॉट लाइंस थी, तो उस पे हमें आपसे एडवाइस ये चाहिए होगी कि हमें आप बताएं हाउ टू मेक इट सक्सेसफुल और हाउ टू मेक इट सेलेबल टू द इंडस्ट्री। इस पे आई लाइक टू हैव योर थॉट्स कि एज अ बिजनेसमैन आप क्या सोचते हो कि मैं ऐसा क्या उसमें प्रपोजल में चीज डालूं कि आप कहें यस मैं ये करने को तैयार हूं, या आपकी प्री कंडीशंस हो कि अगर बच्चे ऐसे ऐसे आते हैं 3 साल बाद आ जाए, आई एम विलिंग टू गिव हिम 6 months 9 months 1 year इंटर्नशिप नहीं। देखो इंटर्नशिप में बच्चा नहीं कुछ सीख के आता, क्योंकि पहला महीना तो आपको वहां जाके सेटल होने में, लंच किस वक्त करना है, आना कैसे है, जाना कैसे है, बात वो बच्चा वही सीख रहा होता है। तो हमारी असेसमेंट ये है कि 9 months to a year इज अ गुड टाइम, और उसमें वो आपको प्रोडक्टिव होके आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी वापस कर देता है। और उसके लिए जैसे आपने कहा है, तो अगर हम 5वें 6ठे सेमेस्टर में उसको वो कोर्सेज पढ़ा दें जो कि आपके लिए ज़रूरी होंगे और उसमें थोड़ी सी स्किल दे दें उसको, बाकी परफेक्शन तो फिर वो प्रैक्टिस से एक्सपीरियंस से ही आएगी। तो आपकी एडवाइस चाहिए होगी हाउ टू मेक इट सक्सेसफुल, हाउ टू मेक इट सेलेबल टू पीपल लाइक योरसेल्फ, ताकि हम कोई अच्छा प्रोडक्ट बना लें जो फ्यूचरिस्टिक हो। बिकॉज आपने ठीक कहा है कि आगे फ्यूचर तो लो टच इकोनॉमी का है। आई थिंक लोगों को एक्सपीरियंस हो गया है कि इट्स लॉट मोर चीपर एंड कॉस्ट इफेक्टिव टू ऑपरेट फ्रॉम होम। और जो इंडिविजुअल्स हैं, अभी कैंडिडली स्पीकिंग ऑफिस में हम सुबह 9-10 बजे जाते थे, बहुत देर हुई 8 बजे तक आ गए, 7-8 अभी 24 आवर्स वी आर ऑन जॉब। और मुझे सैटरडे हो या संडे हो, अनलेस आई डिसाइड कि यार चाहे कुछ हो जाए, आई एम नॉट गोइंग टू ओपन माय कंप्यूटर, वो फिर मोबाइल बज जाता है। तो वर्क लाइफ बैलेंस इफेक्ट हुआ है इसमें। लेकिन मैं ये भी देख रहा हूँ कि मेरा आउटपुट बहुत बढ़ गया। आई एम सो प्रोडक्टिव नाउ, जो मैं ऑफिस में नहीं होता था। ऑफिस में गॉसिपिंग टाइम भी है, लंच टाइम भी है, किसी को मिलने भी जाना है वरना नाराजगियां हो जाती हैं। यहाँ तो आप फोन करते हो या जूम पे आते हो, काम की बात करते हो या मशवरा करते हो, एंड दैट्स इट, और डॉक्यूमेंट हो जाती है वो चीज, आगे चलते हो। तो ये था। तो बेसिकली कमिंग बैक टू माय मेन क्वेश्चन के एडवाइसर्स, हमें आप वाइज करें इस बात पे कि हाउ टू मेक इट सेलेबल प्रोपोजिशन फॉर पीपल लाइक योरसेल्फ। ठीक है। सब ऐसा है कि जो जिस तरह आप कह रहे थे ना कि 1 साल मतलब 3 साल के बाद वो 1 साल यहाँ लगाता है और फिर वो, तो बेसिकली दिस इज अ 5-year प्लान स्टूडेंट के लिए, ठीक है। अब द प्रॉब्लम इज कोई भी इंडस्ट्री जो है ना वो 1 साल के लिए ऐसी कमिटमेंट नहीं चाहेगी। उसकी रीजन ये है कि इट्स नॉट ओनली अबाउट कॉस्ट, इट्स आल्सो अबाउट द टाइम, ठीक है। आप एक बंदा टाइम इन्वेस्ट करता है, क्योंकि जब आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही होती है ना, आप एक बंदे को ट्रेन कर रहे हैं, लेकिन जब आपको पता होगा ना कि वो साल बाद चले जाना है उसने, तो फिर शायद इंडस्ट्री भी उसके लिए सीरियस नहीं होगी, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, और फिर साल का गैप भी आएगा उसके अंदर, आप साल दोबारा उसको यूनिवर्सिटी में वापस बुलाएंगे, उसमें ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो स्टूडेंट है शायद उसका भी इंटरेस्ट ना बने कि जी मैं तो अब कमाने लग गया हूँ, अब मुझे क्या जरूरत है पढ़ने की। ये एक फैक्ट है ना कि मतलब हम लोग जब बैचलर्स कर लेते हैं, अगर किसी बंदे ने फॉरेन मास्टर्स कर लिया तो ठीक है, अगर उसने 2-3 साल बाद इरादा किया तो परसेंटेज थोड़ी है, क्योंकि वो जॉब में जब एक दफा लग जाता है बंदा तो फिर बंदा वापस नहीं आता। दूसरी चीज ये कि इंडस्ट्री आपको प्रॉब्ली शायद एक्सेप्ट ना करे इस चीज को। और तीसरी चीज, आपका साल का जब गैप आएगा तो देयर इज अ चांस कि जो आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज हो गई हो, थोड़ी सी माइनर अपग्रेड भी हो सकती है, ठीक है ना। कुछ डिफरेंट डिमांड्स भी हो सकती हैं। हो सकता है कि उस टेन्योर के अंदर 1 साल के अंदर लेट्स से मजेंटो के इतने लोग आ गए, अब आपने मजेंटो के लिए ट्रेन किया था, वो बंदा कहता है मैं तो मेरे पास तो जॉब ही नहीं उस तरह की, मुझे फिर डोमेन स्विच करनी पड़ रही है। तो व्हाई नॉट कि आप लास्ट मंथ्स के अंदर आप उनको देंगे चांस, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आप दें, ठीक है। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आप कर सकते हैं कि आप इंडस्ट्री के अंदर जाके पूछेंगे आपके प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसके अकॉर्डिंगली फाइनल ईयर प्रोजेक्ट डिजाइन कर सकते हैं। एक तो ये शायद आप लोग कर भी नहीं है, तो बड़ा पुराना कॉन्सेप्ट है कि इंडस्ट्री से हमें प्रॉब्लम्स, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स उठाने चाहिए, और वो ये नहीं होने चाहिए उसमें ज्यादा आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और आपके एनालिटिकल स्किल्स इंपॉर्टेंट होने चाहिए, ठीक है। ये जो वेबसाइट वर्डप्रेस पे बना लेना, मजेंटो पे बना लेना, ये कोई भी कर सकता है। उसको सिर्फ 1 महीना डेडिकेटेड चाहिए, मतलब मैं कहूँगा आप भी कर सकते हैं। 1 महीना डेडिकेटेड आप बैठ जाए तो आप आराम से बना लेंगे वो। दैट इज नॉन टेक्निकल, आई डोंट थिंक दैट इज टेक्निकल। जो जिन स्टेयरवेज पे गूगल चलता है,
जब गूगल आपको हायर करता है तो वो प्रॉब्ली शायद कोड भी नहीं करवाता आपसे, वो आपके एनालिटिक्स चेक करता है, वो आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग देखता है कि आप कैसे करते हैं, वो पेपर पे आपसे करवाता है चीजें, ठीक है ना। उन टर्म्स पे इनको लेके आए। और आई वुड रिकमेंड कि आप लास्ट 2 सेमेस्टर्स के अंदर जो है ना उनके डायरेक्शंस आप सेट करें कि अब आपने जो है ना कहाँ जाना है। अच्छा, एक प्रॉब्लम ये होता है कि स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता होता कि हमारा कोर स्किल है क्या, ठीक है। फॉर इंस्टेंस देखिए, हर बच्चे की अपनी काबिलियत होती है, वो बच्चा बड़ा होता है, हर बंदी की अपनी स्पेशलिटी होती है। अब स्टूडेंट्स ने सुना होगा यार क्वालिटी इंश्योरेंस के अंदर तो पैसे नहीं मिलते, वो तो फारिग सी है, डेवलपमेंट में बड़ा स्कोप है। एक बच्चे को डेवलपमेंट नहीं आती, वो फिर भी डेवलपमेंट में घुसेगा, ठीक है ना, क्योंकि उसको मोटिवेट कर दिया गया है। तो मैं हमेशा स्टूडेंट से हायर करते वक्त ये पूछता हूँ कि आप मुझे बताएं आपकी कोर स्ट्रेंथ क्या है। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके आगे डजंट मीन कि यू आर अ प्रोग्रामर। यू कैन बी अ क्वालिटी एश्योरेंस गाय, यू कैन बी अ ग्राफिक डिजाइनर, यू कैन बी अ बिजनेस एनालिस्ट, ठीक है, यू कैन बी अ सेल्स गाय, टेक्निकल सेल्स भी होती है। तो मेरा ये ख्याल है कि स्टूडेंट्स को इन टर्म्स पे सोचने आना चाहिए और लास्ट सेमेस्टर में आप लोग उसकी डायरेक्शन सेट करें। इंडस्ट्री, मेरा नहीं ख्याल कि आपको 1 साल के लिए ऐसे मतलब उसके अंदर आपको फेवर करेगी इस चीज के अंदर कि 1 साल के लिए एक स्टूडेंट आ रहा है और उसके बाद फिर वो चला गया है और फिर उसका कोई पता नहीं कि वो आपकी इंडस्ट्री में वापस आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा देखिए, ये कनाडा में, अमेरिका में बहुत सक्सेसफुली ये प्रोग्राम चल रहा है और वहाँ पे इंडस्ट्री में जाके काम करते हैं, दे गेट चीपर लेबर। और एक फायदा इंडस्ट्री को ये होता है कि वो जब वापस आते हैं तो उसी कंपनी के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं, उनका प्रोफेसर जो PhDs होते हैं उस डोमेन में उनके साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे होते हैं और फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी आप ही की कंपनी पे कर लेते हैं एंड दे कम बैक टू यू विद लॉट ऑफ रिसर्च मटेरियल विद अ प्रोजेक्ट। और कई दफा उनका जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है वो प्रोडक्ट बन जाता है आपके लिए, बिकॉज डोमेन नॉलेज आपकी है, कंपनी का कल्चर आपका देखा है, तो वो कई दफा आप ही की प्रॉब्लम जब यूनिवर्सिटी में लेके आता है और उसके साथ 3 4 5 PhD प्रोफेसर काम कर रहे होते हैं, उनसे शेयर करता है एंड यू गेट ऑल्सो लॉट ऑफ इनपुट फ्रॉम देयर। उसको आप अपने हिसाब से टेलर करके यूज कर सकते हैं। और दूसरा उसमें सिनेरियो ये है कि वो भी ट्रेन हो जाता है और ही कैन और जो उसका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है वो एक ऐसी प्रोडक्ट बन जाता है जो कि आपके भी इस्तेमाल में आ सकती है। तो आई थिंक थोड़ा सा आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, चैलेंजेस आर देयर। और अभी जिस वेस्ट में या कनाडा में तो अमेरिका में तो कोऑप प्रोग्राम इज टॉप ऑफ द लाइन, बट लोग बड़े शौक से जाके ज्वाइन करते हैं और वहाँ पे इंडस्ट्री का आउटलुक थोड़ा सा प्रॉब्ली डिफरेंट है। अब यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए बच्चे जाते हैं, 3 महीने इंटर्नशिप करके आते हैं और कंपनीज उनको स्टाइपेंड भी देती हैं, 3 महीने काम भी कराती हैं और उसी अगर 3 महीने को हम 6 महीने में या 9 महीने में कन्वर्ट कर लें तो वो इंडस्ट्री के लिए बहुत कुछ करके आ सकते हैं और इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स को वापस एकेडेमिया में ला के अपने प्रोफेसर्स को लगा के एक इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेज बहुत अच्छा क्रिएट हो सकता है। और फॉर एग्जांपल आपको एकदम स्केल अप करना पड़ता है, यू नीड 50 किसी भी डोमेन में, यू नीड 50 पीपल, 40 पीपल, 30, 100, क्योंकि ये इसकी तो स्केलेबिलिटी इस वक्त लॉगरिथमिक है इन ई कॉमर्स एंड क्योंकि आगे सारी लो टच इकोनॉमी है, यू आर राइट इन दैट। तो उसके लिए एकेडेमिया कैन प्ले अ मेजर रोल कि हम एक क्लास या बेशक हम स्किल डेवलपमेंट की शाम को शुरू करें, चाहे हम सुबह उनके कोर्स लोड में डाल दें और आपको वो 50 बच्चे हम 3 मंथ्स में, 2 मंथ्स में, कुछ तो कोर्सेज आप ठीक कह रहे हो 6 वीक्स के हैं बेसिकली। अभी मैं देख रहा था कि कुछ यूनिवर्सिटीज के प्रोग्राम है 8 to 6 और मंडे को शुरू होते हैं, फ्राइडे आफ्टरनून खत्म, फ्राइडे की शाम को वो सर्टिफिकेट देते हैं और डिनर एंड दैट्स इट। और उससे पूरी स्किल नेटवर्किंग भी करा देते हैं, इंडस्ट्री के भी लोग आ जाते हैं। उस तरह के प्रोग्राम्स भी दुनिया में चल रहे हैं। वेस्ट हमसे आ गया तो कोई ना कोई रीजन तो होगा, यू नो। अमेरिका अगर आ गया तो कोई रीजन होगा। चाइना ने एकदम अपना कितना 25% आबादी, 1 अरब लोगों में से 25 करोड़ लोग उन्होंने गुर्बत से निकाल दिए और पूरी दुनिया में वो शॉपिंग करते फिर रहे हैं। तो उसमें प्रॉब्ली चेंज ऑफ माइंडसेट था और उन्होंने लोगों को मौका दिया आगे आने का।
तो इस तरह की चीजें हैं, इस पे आप भी सोचो, कोई थॉट्स अच्छी आए मतलब तो आप शेयर कीजिएगा। मोहित विल बी इन टच विद यू। दूसरा वी लाइक टू इनवाइट यू कि आप हमारे रोड मैप्स में भी आके देखो, अगर दे आर थिंग्स दैट यू वुड लाइक आवर स्टूडेंट्स टू नो व्हेन दे ग्रेजुएट, तो वो इंशाल्लाह हम आपको बुला के सेशन करा लेंगे। एंड देन वी लाइक टू इनवाइट यू एज गेस्ट स्पीकर, टॉक टू आवर स्टूडेंट्स, उनको आप बताएं कि आगे करियर कैसे बिल्ड करना है। आपने बात की ना एटीट्यूड की, आई फुली एंडोर्स दैट कि वो आपने जरूर बताना है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर और आईटी इंडस्ट्री के जो लोग हैं, ये हमारा एक सॉफ्टवेयर का एक बच्चा था इत्तेफाक से, ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ ड्रामेटिक्स, वो ड्रामेटिक सोसाइटी का भी प्रेसिडेंट था। तो वो एक दिन मुझे आके कहता है, सर हमारा, मैं कहा प्रॉब्लम क्या है, तुम लोग मुस्कुराते क्यों नहीं हो? कहता है सर हमारा प्रॉब्लम बड़ा सिंपल है, हम 12 घंटे स्क्रीन के आगे बैठे होते हैं, तो वो 12 घंटे के बाद कंप्यूटर भी हमें लानत दे रहा होता है। तो वी हैव बिकम रोबोट्स बिकॉज़ वी आर नॉट इंटरेक्टिंग विद द पीपल। 12 घंटे हम उस पे। तो ये भी आके आपको इनवाइट करेंगे, कम एंड शेयर योर एक्सपीरियंस, टेल देम व्हाट यू थिंक इज राइट, एंड ये आपका थोड़ा सा इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेज हम क्रिएट करते हैं इंशाल्लाह। और आपके साथ मोहित विल डिस्कस विद यू साइनिंग ऑफ एमओयूज आल्सो, जिसपे हम इसको फॉर्मल रिलेशनशिप को कर लें। मोहित आप डिस्कस कर लेना। एक मेरी प्रेजेंटेशन है सारा, कैन यू क्विकली ईमेल मी, या मोहित को आप ईमेल कर दें सीईओ की प्रेजेंटेशन, और मोहित आप जरा उसको अगर ऑनलाइन कर दो तो मैं जरा उमेर साहब से उनके टाइम का एडवांटेज लें, उनसे जरा शेयर करें। श्योर सर। अच्छा नकी साहब एक जी सॉरी आप बता लें, मैं फिर करता हूँ बात। हाँ बस मैं ये कह रहा हूँ कि एक प्रेजेंटेशन हमने बनाई हुई है, वो भी आज हम शेयर करें, बिकॉज कैंडिड टॉक्स ही हमें चाहिए, बिकॉज हाउ टू मूव फॉरवर्ड, ओनली वे फॉरवर्ड इज कैंडिड टॉक योर हार्ट आउट। आप सोचिएगा इस पे, एक प्रेजेंटेशन है वो जैसी अपलोड होती है वो भी आपसे मैं शेयर करता हूँ, विल टॉक अबाउट इट। जी आप बताइए, आप कुछ कह रहे थे उमेर साहब? हाँ नहीं, मैं एक इनपुट देना चाह रहा था। आपने कहा ना कि कनाडा और यूएस में हो रहा है, आपका आवाज सही आ रही है? जी जी, पीछे फ्रीज होती है लेकिन ठीक हो गई। जी जी अच्छा, थोड़ी आपकी अपलोड स्पीड ड्रॉप हुई है तो फ्रीज हो रही है उसकी वजह से। मैं कह रहा हूँ कि अच्छा अच्छा, इसमें मैं इंटरनेट कनेक्शन चेंज करके देखता हूँ, एक मिनट। मैं भी जब जूम पे होता हूँ ना तो मैं फिर क्या करता हूँ, जोन की सिम के ऊपर मैं चला जाता हूँ, बिकॉज उसमें डेडिकेटेड पैकेज होता है तो वो प्रॉब्लम नहीं आती। अदरवाइज मेरा राउटर है वो तंग करता है, वो डिप कर जाता है। इस वक्त मैंने कनेक्शन चेंज किया है, जोन की सिम पे गया हूँ तो ट्रबल फ्री सब चल रहा है। सही नहीं, वो राउटर वैसे भी शेयर्ड होगा ना आपके घर में, कोई यूट्यूब भी चलती होगी, बच्चे भी कार्टून देखते हैं, बड़े भी देखते हैं। बड़ा हैवी यूज है, यू नो, दैट्स द ओनली कनेक्टिंग पॉइंट नाउ। ऐसे ही है सही है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जो यूएस और कनाडा की आपने बात की ना, मेरा ये ख्याल है कि इसमें इंडस्ट्री का भी डिफरेंस हो सकता है। कुछ रिसर्च बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ अपनी प्रोडक्ट्स बिल्ड कर रही हैं, ठीक है। तो लेट्स से मैं एग्जांपल अगर ऐसे दूं कि अगर आप यहाँ पे चले जाते हैं, लेट्स से JF-17 की फैक्ट्री में चले जाते हैं, उनको एक नए पार्ट की जरूरत है जिसके ऊपर रिसर्च चाहिए कुछ मैकेनिकल इंजीनियर्स को, ठीक है ना। वो तो साल अपना काम करेगा और वो कुछ चीज बनाएगा, और हो सकता है वो अगले साल भी कंटिन्यू रखे और फिर वो कोई प्रोडक्ट उनको दे। ये हमारी है सर्विसेज इंडस्ट्री। सर्विसेज इंडस्ट्री में ये होता है कि आपको फॉरन आउटपुट देनी होती है, आपने जो काम सीखा आपने क्लाइंट को डिलीवर करना है, ठीक है, और आपने डिलीवर करने के बाद बस आपने और वो चीज भी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, इसमें कोई इनोवेशन नहीं है एज सच, एज कंपेयर टू जो रिसर्च बेस आपकी होती हैं। तो इसमें दो पर्सपेक्टिव, यू आर राइट। मेरा ये ख्याल है कि ये आपका मॉडल रिसर्च बेस में शायद बेहतर चल सके। सर्विसेज में मतलब क्योंकि हमारे पास गारंटी नहीं है, क्योंकि जिस प्रोडक्ट पे हम काम कर रहे हैं उसी प्रोडक्ट पे 15 और कंपनीज काम कर रही हैं, तो वी डोंट हैव एनी गारंटी कि ये बंदा साल बाद भी हमारे पास आएगा, ठीक है ना। प्रोडक्ट होती है वो कंपनी टू कंपनी स्पेसिफिक होती है, मेरा ख्याल है। देखिए आईटी इंडस्ट्री में तो ग्लोबल प्रॉब्लम है, टर्नओवर इज वेरी हाई, एम्प्लॉयज नहीं ठहरते, एंड वो आई वाज टॉकिंग टू, एक बड़ा नाम है, बड़ी कंपनी है, मैं वहाँ बात कर रहा था, तो उसने कहा यार हमारा जो एवरेज है ना स्टे किसी भी बंदे का हमारी कंपनी में
वो 6 to 9 months है। इसमें हमारी टीम ही चेंज हो जाती है और हर साल आप अगर देखोगे तो यू विल फाइंड एटलीस्ट 60% न्यू फेसेस। तो और काफी बड़ा ब्रांड है वो। तो ये इस इंडस्ट्री का प्रॉब्लम है। और मैं कुछ ISP वालों से बात कर रहा था, उनको भी प्रॉब्लम है। वजह यार बड़ी कैंडिडेट, और एक बहुत बड़ा ब्रांड है, उनसे हमारी बात चल रही है अभी, जो प्रॉब्ली पाकिस्तान की, बेस्ड आउट ऑफ पाकिस्तान है, तो वो ग्लोबल कंपनी, शायद सबसे बड़ी कंपनी है। उन्होंने क्या किया है, एम्प्लॉइज को रिटेन करने के लिए व्हाट दे हैव डन इज कि फॉर एग्जांपल एक फ्रेश ग्रेजुएट ज्वाइन करता है या 1 साल का एक्सपीरियंस किसी भी एरिया में, जरूरी नहीं है सॉफ्टवेयर में या प्रोग्रामिंग में, HR में फॉर एग्जांपल, रिक्रूटमेंट में, तो 6 महीने बाद उसको वो गाड़ी खरीद के दे देते हैं, जिसकी डाउन पेमेंट वो करते हैं और 50% किस्तें वो देते हैं, 50% एम्प्लॉय दे रहा होता है। अच्छा, उस तरह उन्होंने और भी चीजें इतनी सारी ऐड कर दी, लंच सारा फ्री है, उसके बाद उनकी और बड़ी चीजें हैं, मतलब वो ऐसा पैकेज है कि आप 5 साल तक तो गाड़ी आपके नाम पे होनी है। तो वहां पे एवरेज स्टे ऑफ एम्प्लॉय इज माशाल्लाह वेरी गुड, मतलब छोड़ के ही नहीं जा रहे लोग वहां से। एक आध जो उनका कॉल सेंटर है उसका तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वहां पे थोड़ा सा टर्नओवर का रहता है। उसके अलावा किसी डिपार्टमेंट से कोई छोड़ के नहीं जाता, बिकॉज वो हुक कर देते हैं। तो अगेन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की बात है। सारा, अगर आप रन कर रही हो प्रेजेंटेशन कि मोहित आप कर रहे हो? तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि देखो ये चैलेंजेस तो हैं, और जो आज आपके साथ, मतलब बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स भी पार्टनर थे, एक उनका पार्टनर और था जिसे कोई जानता नहीं है, एंड व्हाट हैपेंड वी ऑल नो। ओके, तो ये थोड़ा सा आई थिंक थोड़ी गुंजाइश पैदा करने की बात है, और अच्छी रिसोर्सेज मिल सकती हैं। अच्छा, ये मैं आपको एक क्विक प्रेजेंटेशन दूंगा। इसमें हमने UMT के 2 प्रोग्राम शुरू किए, एक कोऑप प्रोग्राम जो आपसे मैंने डिस्कस किया है अभी, एक हमारा UMT कंसल्टिंग का प्रोजेक्ट भी आ रहा है इंशाल्लाह। उस पे हम मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च बेस्ड प्लस स्पेसिफिक बेस्पोक सॉल्यूशंस टेलर्ड टू ऑर्गेनाइजेशनल नीड। आप कहते हो जी हमारी ये प्रॉब्लम है, हमारे पास कोई तकरीबन 250 PhD है, 200 PhD हमारे पास रेगुलर है, जिसमें बहुत बड़ा नंबर है जो इटली से, स्वीडन से, अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया, मतलब तो वो पूरी हमने स्किल सेट एक्सट्रैक्ट करके, और एक अब फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी है, उसमें आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए, डाटा साइंस का आदमी चाहिए, आपको प्रोग्रामर चाहिए, आपको ग्राफिक्स का बंदा चाहिए, आपको मार्केटर चाहिए, डिजिटल मार्केटर चाहिए, वो पूरा पैकेज आपको इन वन गो, आपको 10 जगह जाने की जरूरत ही नहीं है, एक ही जगह सब मिल जाएगा। You want to train your people in some new technology because technology change होती रहेगी। तो वो भी हमारा पूरा एक स्कूल ऑफ प्रोफेशनल एडवांसमेंट है। इस पे इसको बोलते हैं कन्वर्जन इन सर्टेन डोमेन्स। तो आपका सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर है, उसको लैंग्वेजेस आती है, एक टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट है, उसके बाद आपने किसी दूसरी पे कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्जन 6 वीक्स, 3 वीक्स, 2 वीक्स डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी वो हो सकती है। तो दैट इज वेयर हमने एक बेस्पोक सॉल्यूशन पूरा इंडस्ट्री के लिए बनाया है। आप आगे चले, नेक्स्ट स्लाइड। तो ये हमारे इब्राहिम मुराद साहब हैं जो प्रेसिडेंट हैं, माशाल्लाह वेरी डायनामिक, एनर्जेटिक, हम सबसे ज़्यादा काम यही करते हैं। और ये इनका एक मैसेज था कि इट्स एस्टैब्लिश्ड फैक्ट द पोस्ट कोविड-19, ये मैं बस एक पढ़ूंगा, बाकी तेज चलेंगे। ह्यूमन रेस इज आइंग न्यू नॉर्मल, पुशिंग टू रीप्रोग्राम आवर थॉट्स। तो इसमें सेकंड पैराग्राफ है, ये आपकी फ्लिकर कर रही है, पिछली साइड पे जाएं। UMT as a knowledge creation hub would like to extend its intellectual capital along with passionate students to meet the mounting challenges facing us today। तो ये एक हमारी थॉट है इसमें, जिसको हम लेके चल रहे हैं। तेज तेज चलाएं ताकि ज़ुहैर साहब बोर भी ना हो जाए, डेथ बाय पावर पॉइंट ना हो जाए। अच्छा, ये थॉट लाइन है, इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेज, एंड दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग एट। आगे चलें। इसमें आपका फायदा होगा तो ये काम चलेगा। हमारा जाती कोई एकेडेमिया को हम देख रहे थे, कोई फायदा नहीं है। हाँ, क्या है, हमारे स्टूडेंट का फायदा है और इंडस्ट्री का फायदा है। हमारा फायदा क्या होता है, अगर इसमें से सक्सेस स्टोरीज निकल आती है तो हम अपनी मार्केटिंग में यूज कर सकते हैं,
That is 4-5 years away from today, but we are willing to take this chance. अच्छा, ये वुका टाइम्स, इसको हम कहते हैं vulnerable, uncertain, complex, ambiguous है. कल क्या होना है nobody has seen tomorrow, और उसके लिए prepared रहना बहुत जरूरी है, pre-informed रहना बहुत जरूरी है. तो आगे चलें. तो move forward. ये सिनेरियो एमर्ज हुआ है. मैं आपको कैंडिडली बताता हूँ, हम लोग बड़ा तैयारी करके बैठे हुए थे कि 2025 में और 2030 में दुनिया चेंज हो जाएगी. 2025 में तकरीबन 800 मिलियन जॉब्स खत्म हो जाएंगी, और तकरीबन, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट थी, 75% कंपनीज खत्म हो जाएंगी, और ये 30 में ये हो जाएगा. तो 25 to 2030 बड़ा डिफिकल्ट टाइम था, और हम उसके ऊपर वर्किंग कर रहे थे. लेकिन कोविड आया 2020 में, उसे 2020 मैच खेल के सारों की बोल्ड कर दिया. एवरीबॉडी इज बोल्ड. तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. VUCA Funfair इंटरेस्टिंगली प्रोजेक्टेड. दिस इज द एज ऑफ चेंज. ऑर्गेनाइजेशंस कियोस है सब तरफ, और बंदा इसमें स्टेबल कौन है? इसमें आप अगर देखो तो ये दरख्त पे बैठा हुआ है. दिस इज द रियलिटी ऑफ टुडे. और उसमें एवरीबॉडी इज मूविंग अराउंड. इट्स टोटल a fun fair of VUCA, which means nobody knows what to do. और इसमें how to create a anchor, वो आपने कैसे करना है, वो भी एक बंदा बलून के ऊपर एंकरिंग कर रहा है. आगे चलें. तो अब ये न्यू नॉर्मल आ गया. आगे चलें. तो आगे चलें. तो हमें कह रहे हैं लेट्स रिकैलिब्रेट. हमें रिकैलिब्रेट थॉट्स का करना बहुत जरूरी है. बाकी चीजें आसान होती हैं. तो उस तरफ हम जा रहे हैं. तो to formulate strategies for you to build upon the strengths of your organization with a view to capitalize on opportunities and minimize threats with creative and innovative solutions. अभी क्या है, एज अ CEO आप डेली चैलेंज फेस करते हो. क्लाइंट आ गया, यहाँ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, इसको आप सॉल्व करने में लगे हुए हो, रेवेन्यू के लिए लगे हो, तनख्वाहें देनी है, बिल देने हैं, वो सारे चैलेंजेस आपके पास हैं. CEO आपका अपना पर्सनल टाइम डेवलपमेंट में या टेक्निकल साइड पे इतना नहीं लगता होगा जितना एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे लगता होगा. तो उसमें टू गिव यू क्रिएटिव एंड इनोवेटिव सपोर्ट, ये हम बच्चे तैयार करके स्कोप आपकी तरफ कर सकते हैं, और पूरा बेस्ट बॉक्स सोल्यूशन दे सकते हैं. और जब एकेडेमिया से डील करते हो तो इतना एक्सपेंसिव भी नहीं होता. एज एक तो होती है ना इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसके साथ चैलेंजेस अलग हैं. आगे चलें. ये हमारी वैल्यू क्रिएशन मैट्रिक्स है. ये प्रेजेंटेशन मुझे आप इनसे शेयर कर लेना सारा, आप इनको ईमेल कर देना. ये हमारी फर्स्ट प्रेजेंटेशन है. अभी हमने इसको कटआउट्स बनाने हैं इसके, आपको ईमेल भी कर देंगे. कंसल्टिंग है हमारा, कोऑप है, नीश HR डेवलपमेंट है, उसके बाद इनोवेट एंड रीइन्वेंट, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, इकोनॉमिक, ये आपको हम ईमेल कर देंगे, आप देख लीजिएगा. उसके बाद वी कैन हैव सेकंड सेशन आल्सो. ये अभी तो सिर्फ मैं इंट्रोडक्टरी मीटिंग आपसे कर रहा हूँ, टेक योर थॉट्स. माशाल्लाह यंग एज में यू हैव बीन अ वेरी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर. आगे चलें. आगे चलें. की आवाज फ्रीज हो गई है. अच्छा, मेरी आवाज फ्रीज हो गई है. जी जी, अभी सही हुई. हेलो, मैं अपना कैमरा ऑफ करता हूँ. ओके जी सही है. अब बेहतर हुई. कुछ बेहतर है. ओके गुड. आई एम नॉट श्योर, मेरे पास तो इंटरनेट अनस्टेबल की कोई नहीं. अच्छा, वो हो सकता है, हालांकि मैंने अभी जोन की सिम पे किया है और उस पे तो ये डिप नहीं करता, लेकिन चले कोई बात नहीं, विल कैरी ऑन विद दिस. अच्छा, तो व्हाट वी आर सेइंग इज कि वी आर अ मल्टीडिसिप्लिनरी हब ऑफ एक्सपर्ट्स विद सेवरल 100 years ऑफ क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस, और सब दुनिया भर से पढ़ के आए हुए हैं. कैंडिडली स्पीकिंग, आपके प्लेटफॉर्म में हम तो लाइफ साइंसेस की चीजें भी डाल के, और अगर आप ओपन हो टुवर्ड्स डाइवर्सिफिकेशन इन हेल्थ केयर, उसके ऊपर भी बड़ा कुछ करके आपकी ई-कॉमर्स के थ्रू एक प्लेटफॉर्म क्रिएट हो सकता है. बट अगेन यू नो इट्स ऑल सब्जेक्ट टू डिस्कशंस, ब्रेनस्टॉर्मिंग. आपका एपेटाइट क्या है, अभी आप ओवर कमिटेड हो अपने एरिया में. तो जी जी, आवाज आई एम सॉरी जरा बीच में ना मिस हो गई थी. आप लास्ट स्लाइड पे हम थे, HR और जो आप बता रहे थे मुझे. ओके, पीछे जाएं, पीछे वाली स्लाइड पे जाएं. जी, ये वाली. जी जी, ये वैल्यू क्रिएशन मैट्रिक्स है जिसपे हम क्या ऑफर कर रहे हैं आपको. अगर हम कोलैबोरेट करें इंडस्ट्री और एकेडेमिया, और मिलकर हम क्या कर सकते हैं.
UMT आपको कंसल्टिंग प्रोग्राम पूरा दे सकती है, bespoke, इंक्लूडिंग टेक्निकल मैनेजमेंट, IT सॉल्यूशंस, वी हैव एवरीथिंग। हमारा डेटा साइंस का बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है हमारा, और उसमें सारे हैंड्स ऑन प्रैक्टिशनर्स हैं, कोई इंग्लैंड से PhD करके आया हुआ है, कोई कहीं से करके आया हुआ है, एंड तो पूरी एक कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर इज एट योर सर्विस कि आप बताएं कि क्या करना है, एंड विल प्रोड्यूस bespoke solutions which are particularly suitable for your organization, और आपको एक कंपैरेटिव एज देने की भी हम वर्किंग कर सकते हैं उसके ऊपर। अच्छा, फिर हमारा कोऑप प्रोग्राम है जिसपे एट द एंड ऑफ द डे, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, डिजिटल एज में जो हमने जो सारा समझा है एक्सपीरियंस लोगों से भी और बाकी भी, वो ये देखा है कि दिस चेंज इज नॉट अबाउट टेक्नोलॉजी, इट्स अबाउट टैलेंट। आपका जो ह्यूमन टैलेंट है ना, वो इतना अच्छा होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी तो सुबह चेंज हो जाएगी, शाम को चेंज हो जाएगी, अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए उसकी। तो डिजिटलाइजेशन इज अबाउट ह्यूमन कैपिटल रादर देन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी पे तो मैं अपना आउटलुक तो ये है कि भाई टेक्नोलॉजी बेस्ड ना रहो, कोर आपका ठीक हो, टेक्नोलॉजी कोई भी आएगी आप कर जाओगे। फिर niche HR development which means particular to your needs of your organizations, उससा कि हम आपको लोग तैयार करके दें, और उस पर जाहिर आपको हमारे साथ काम करना होगा। कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी से हमारी बातचीत अभी हुई है, वो हमारे एलुमनाई हैं, वो कह रहे हैं कि मैं ट्रेनर ला के दूंगा, 3 हफ्ते का कोर्स आपके बच्चों को कराना है और मेरे पास भेजना है, मुझे 30 बच्चे चाहिए हर साल अभी की हिसाब से, लेकिन इट कैन गो अप। तो वी आर वर्किंग ऑन दैट एरिया, अभी देखते हैं क्या होता है उस पर, क्योंकि उनके इंस्ट्रक्टर ने कनाडा से आना था, so that was a challenge। अच्छा, इनोवेट टू रीवर्क एंड री इंजीनियर, अभी आपका ना एक माइंडसेट बना हुआ है, आप ओनर हो, आप ऑपरेशन भी देख रहे हो, फाइनेंस भी देख रहे हो, टेक्निकल भी देख रहे हो, क्लाइंट को भी देख रहे हो, और टीमें काम कर रही हैं। तो आपका टाइम हम फ्री कर देंगे इस तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल से, एंड देन यू कैन फोकस ऑन क्रिएटिविटी कि मुझे मजीद एक्सपेंशन क्या करनी है। शुड आई गो इनटू हेल्थ केयर, शुड आई गो इनटू सम अदर एरिया, स्मार्ट सिटीज में जाऊं, उसके लिए मुझे क्या चीज चाहिए, क्या करना चाहिए। तो वो थोड़ा सा आपका पर्सनल टाइम इन्वेस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर्विस इंडस्ट्री में योर कॉस्ट इज योर टाइम, और वो आप $1 में अपना 1 घंटा लगा रहे हो या $1,00,000 पर आवर की वर्किंग पे टाइम लगा रहे हो, वो आपका आउटलुक होता है। चाइना ने और जो डेवलप वर्ल्ड है उसने यही किया कि जैसे आपकी तरह के जो सक्सेस हो गई बिजनेस में, दे स्टार्टेड। अभी आप इलॉन मस्क को देख लो, आवाज ही नहीं आता, हर दफा वो फिर नई चीज में हाथ डाल देता है कि कहता है यार मेरा वहां पे टाइम जो है ना, इट इज कॉस्टिंग मी टू मच, तो मेरा जो $1 million पर आवर का जो कॉस्ट है, आई शुड पुट इन समथिंग बेटर देन व्हाट आई एम डूइंग। इसका रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन प्लान है कि आपके रिस्क स्टडी हम करें, क्या हो सकते हैं इसमें, टेक्नोलॉजिकल चेंज है, HR चेंज है, माइंडसेट चेंज है, कंज्यूमर बिहेवियर का चेंज है, और कस्टमर ओरिएंटेशन का चेंज है। अभी आप देखो लुई विटॉन जो है, वो अगर ई-कॉमर्स से बेचेगा तो लुई विटॉन की वैल्यू 0 हो जाएगी, राइट? रोल्स रॉयस यू कैन नॉट सेल ऑन ई-कॉमर्स। हाँ, आप बाटा, टोयोटा, मोटरसाइकिल, साइकिल ये बेच सकते हो, बट यू कांट सेल डायमंड्स ऑन ई-कॉमर्स। ऑल्दो 1-2 कंपनियों ने काम किया इसके ऊपर, लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा उनका। इसका एकेडमिक पार्टनर आप आ जाओगे कि हम आपको पूरी एकेडमिक इंटेलेक्चुअल सपोर्ट देंगे, और ये सारे काम हम आपके साथ मिलके एज योर बैक एंड रिसोर्स हम लगे हुए होंगे कि कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम आती है तो यू हैव अ शोल्डर टू फॉल बैक ऑन। आप हमारे पास आओगे एंड वहां पे ऑलरेडी एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, उसी दिन बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हो जाएगा, टेम्पलेट बन जाएगी, ये चैलेंजेस हैं, इसके हल निकालने हैं। और फिर पोर्टर प्रिंसिपल आप देख लो, जो 5 चैलेंजेस होते हैं, एकेडेमिया जरा ऐसी बातें करता है यार, पढ़ी लिखी, तो वो पोर्टर नहीं अच्छी बात है, वो आप देख लो कि 5 चैलेंजेस होते हैं और उनको आपने अभी से कैप्चर करना है, अभी से उनके ऊपर आपने, वाल यू आर माशाल्लाह ऑन अ सक्सेस ट्रैजेक्टरी, आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, शायद 20-30% पर एनम ग्रो कर रहा हो, शायद 50% कर रहा हो, लेकिन देन पीछे कौन आ रहा है आपको खाने के लिए, उसको भी ब्लॉक करना है। और अगर कोई आता है, एक स्टेज ऐसी आती है, देखिए मैं आपको बात बताऊं, आज आपकी अगर कंपनी की नेटवर्थ $1 million है ना, मैं फिगर वैसे डाल रहा हूँ, आप अपना टाइम आपने लगा के इसको $1 million पे ले गए। अब जो आपका ह्यूमन कैपिटल है ना, वो आपकी टीम में, एम्प्लॉइज में नहीं है। नाउ यू हैव टू पुट योर टाइम इन समथिंग जो आपकी कंपनी को अगले 2 साल में $10 million पे ले जाए। आप ले जा सकते हो, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी ग्रेजुएटेड फ्रॉम द इनिशियल प्रॉब्लम, आपको पता है कैसी प्रॉब्लम्स आनी है।
अब आपको चाहिए रिसोर्सेज कि आप किससे मशवरा करो, किसके साथ बैठ के बात करो, और एक चीज बनवानी है तो किसके साथ बैठ के बनवाओ, और उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, उसकी O&M है, डिजाइन डेवलपमेंट है, तो आप अपना ब्रेन यूज करें। और बाकी जो काम है, चाहे वो उस पे मैन आवर्स हैं या इंटेलेक्चुअल मैन आवर्स हैं या फिजिकल मैन आवर्स हैं, वो आप बेशक आउटसोर्स कर दें जो दुनिया ने किया, लेकिन आपका जो है ना मेंटल टाइम इज योर एसेट। और आप अगर अपनी कैंडिडेटली अपनी बनाना कि मैं एक दिन में कितने घंटे मैं डेवलपमेंट पे लगाता हूँ और कितने घंटे एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज में लगाता हूँ, ये भी वही सरप्राइज कि मैं खुद भी करता हूँ, मैं खुद भी हैरान होता हूँ और कई दफा हल नजर नहीं आता। तो आगे चलें सारा, नेक्स्ट। तो वी विल बिकम योर एकेडमिक पार्टनर, और एकेडमिक हम ऐसे हैं कि जिसके अंदर इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, और जो आपकी डोमेन है उसमें तो जो पढ़ के भी आता है वो एक्सपीरियंस होता है उसमें। तो दिस इज वेयर वी आर, एंड देन वी कैन ऑफर यू मल्टी डिसिप्लिनरी हब ऑफ एक्सपर्ट्स। मतलब ये नहीं है सिर्फ मैं आपको डाटा साइंस के या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के या हार्डवेयर या नेटवर्किंग का बंदा दे रहा हूँ, नो, आपका कोई चीज होगा तो हम कंप्लीट सोल्यूशन देंगे आपको, और उस पे आईटी का बंदा भी होगा, मार्केटिंग का होगा, फाइनेंस का होगा, जो भी रिक्वायरमेंट बनेगी, जो वर्क स्कोप बनेगा, जो चीजें करने के बाद आप एक नया एक पैरेलल खड़ा कर सकते हैं, इससे बड़ी कंपनी खड़ी कर सकते हैं, उसकी तमाम सपोर्ट मिल जाएगी आपको यहाँ से। आगे चलें। ठीक, ये हमारी एक्सपर्टीज हैं जो हमने लिस्ट डाउन की हैं, मीडिया कम्युनिकेशन, टेक्सटाइल, डेटा साइंस, टेक्नोलॉजी, फर्टिलाइजर। मतलब ये यहाँ पे तो हम बिल्कुल आंखें बंद करके जंप मार लेना तो भी वी कैन माशाल्लाह माशाल्लाह प्रोड्यूस टॉप रिजल्ट्स। और इसके अलावा भी हमारी और चीजें हैं, तो ये आपको हम प्रेजेंटेशन शेयर कर लेंगे। आगे चलें, नेक्स्ट। अच्छा, ये प्रेजेंटेशन मुझे अवेलेबल होगी जी जी, आपको अभी ईमेल कर देंगे हम, जैसे सेशन खत्म होता है इट विल बी सेंड टू यू। मोहित आप ईमेल कर देना, और फॉलोअप मीटिंग भी हम कर लेंगे जब भी आप फ्री हो, जस्ट लेट मोहित नो, हम फिर इंशाल्लाह जूम पे आ जाएंगे। कोऑप प्रोग्राम का ये था चीजें कि आपका टाइम भी मैं काफी ले रहा हूँ, तो ये कोऑप प्रोग्राम नहीं, कोई मसला नहीं, आप यू कैरी ऑन। ग्रेट, थैंक यू। तो दिस करें, वो मेरा सिर्फ इंटरनेट प्रॉब्लम को थोड़ा सा कर रहा है। कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, 1-2 मिनट, वी कैन यू नो। लेट मी स्विच द इंटरनेट अगेन। हाँ कर लें आप, प्लीज कर लें। ये वर्क फ्रॉम होम के ना मसाइल हैं। अच्छा, वर्क फ्रॉम होम का जो सबसे बड़ा मसला है ना, वो एक कंडीशनिंग कॉस्ट है। तो मैं तो अपनी यूनिवर्सिटी को कहने लगा हूँ कि भाई आप बिजली के बिल सबके दो। देखिए, वर्क फ्रॉम होम का एक और बड़ा नुकसान है कि घर वालों को लगता है कि आप छुट्टी पे हैं, और दफ्तर वालों को लगता है कि आप दफ्तर में हैं, तो आप एक्चुअली कहीं के भी नहीं होते। ये कैंडिडेटली स्पीकिंग ये प्रॉब्लम है, और कई घरों में लोग, अच्छा स्पेशली जो गर्ल्स है ना, उनके घर वाले समझ रहे हैं कि छुट्टियों पे है ये, उनको तो काम ही नहीं करने दे रहे, वो खाना पकाओ, जो हमारा फीमेल सेक्शन है जिसकी जिम्मेदारियां घर में होती है। तो बहुत सारी हमारी जो फीमेल वर्कर्स हैं यूनिवर्सिटी में, वो उनसे मैंने कहा तुम घर से क्यों नहीं काम कर रही, कहते सर घर से कैसे काम कर रहे हैं, हमें ऑफिस आते हैं तो काम कर लेते हैं, घर वाले समझ ही नहीं रहे अभी तक। तो आई थिंक ऐसा ऐसा लर्निंग कर्व है, समझ जाएंगे। ऐसे ही है, चलें, यू कैरी ऑन। मतलब मैंने इंटरनेट चेंज कर लिया, आई होप इट्स बेटर नाउ। ऑलराइट, ओके। तो इम्पैक्ट बाइट्स मतलब कोऑप प्रोग्राम का आपको क्या फायदा है? उसमें स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है कंबाइनिंग क्लासरूम लर्निंग विद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन इंडस्ट्री। आपका द ग्रेजुएट विल बी इंसाइटफुल एंड प्रोडक्टिव फ्रॉम डे वन ऑन द जॉब। वो अच्छी खासी लर्निंग लेके आएगा, और आपके कल्चर के मुताबिक सॉफ्ट एटीट्यूड, इंग्लिश बोलनी है, कपड़े कैसे पहनने हैं। एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने हमारे कहने पे कुछ बच्चे रख लिए, तो बड़े अच्छे बच्चे, ही लाइक टेस्ट वेस्ट लिया जबरदस्त। उसमें से एक बच्चा जो बहुत अच्छा था, उसको कहा यार प्लीज तुम जीन्स पहन के नहीं आओगे, जॉगर्स पहन के नहीं आओगे, साफ कपड़े पहन के। साफ तो होते थे लेकिन ये कि कम इन बेटर। तो उसने कहा सर मैं वो उसने नहीं बात मानी। तो
फाइनली वो छोड़ के आ गए जी, मैंने ऐसे ही काम करना है तो करना है, तो लेकिन वो भी बड़ा जरूरी है आज की तारीख में कि उनको ड्रेस कोड का समझाना। फिर ये रिक्रूट विद लो रिस्क, कि आप जब बंदा हायर करोगे ऑलरेडी काम करके गया होगा, आपकी कंपनी का उसको पता होगा। और देखिए मैं आपको एक और बात बताता हूँ, एक एक्सेलरेटेड प्रमोशन प्रोग्राम भी होता है जो आप दुनिया की सब बड़ी कंपनी से शुरू कर दिया हुआ है, कि जिसमें जो अच्छा रिसोर्स आता है उसको आप प्रोजेक्ट मैनेजर, देखिए ना, एक बंदा है डेवलपमेंट अगर कर रहा है या प्रोग्रामिंग कर रहा है, कितने अर्से कर लेगा, 5 साल 8 साल 10 साल, इसके आगे नहीं, मर जाएगा इसके आगे। उसके बाद उसने या तो प्रोग्राम मैनेजर बन जाना है, या मार्केटिंग सेल्स की तरफ चले जाना है, या प्रोजेक्ट को हेड कर रहा होगा। तो इस तरह का करियर पाथ अगर क्लैरिटी के साथ दिया जाए आज के बच्चों को, और उसमें इंसेंटिव प्लान सारे पता हो साथ, भाई कंपनी ग्रो कर रही है तो कंपनी ने 100 रुपए कमाए, 10 रुपए शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और दुनिया ने देखा है कि उसी का फायदा हुआ। फुली ट्रेन टैलेंट विद नो डाउन टाइम, वो आएगा पहले दिन ही, प्लग एंड प्ले है आपकी कंपनी के लिए। लो रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग कॉस्ट, आप बस प्लग एंड प्ले आपको बचा दे देंगे। गेट न्यू क्रिएटिव आइडियाज फॉर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो जब आपके पास काम करके वापस आएगा, अपने पीएचडी प्रोफेसर को इम्प्रेस करने में लगा हुआ होगा, तो वो भी आइडियाज देंगे, तो बहुत सारी चीजें उसमें फिर इम्प्रूव होती हैं। और हमारी फैकल्टी आपके साथ एंगेज हो जाएगी, उसमें ये भी है, ये मतलब ये फ्री भी है किस्म का, कि वो भी आ जाएंगे आपके पास, अच्छा यार ये प्रॉब्लम है, हम इसको अपने स्टूडेंट्स को देते हैं, इस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। या आप कहते हो कि जी ये जो मैं ओपन सोर्स यूज कर रहा हूँ, मैं उसमें ये एक स्ट्रिंग क्रिएट करना चाहता हूँ, जिससे मुझे ना ये मेरी एक डिफरेंशिएटिंग एज हो जाएगी, जिससे मैं अपने कंपटीशन को बीट कर लूंगा। तो दीज गाइस विल, क्योंकि जितने भी ऑनलाइन भी हैं, आपको 30% 40% अमेंडमेंट की परमिशन देते हैं आपको वो, और एपीआई के थ्रू आप कनेक्ट कर लें किसी भी सिस्टम के साथ, कोई इशू ही नहीं है। आगे चले। तो नीश एचआर आपकी डेवलप हो जाती है, और इसमें दिस इज अ वेरी स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ टॉकिंग अबाउट इट, कि शेयर योर एनुअल एचआर रिक्वायरमेंट विद यूएमटी। अच्छा, ये किसी कंपनी को नहीं पता होता, कोविड के बाद, पहले पता था लोगों को, ठीक है, लेकिन आपको ये पता होता है कि यार मेरे 3 लोग छोड़ जाते हैं, मुझे 4 चाहिए होते हैं, तो इस तरह मुझे लोग चाहिए होंगे। अब मैं आपको ना यहाँ पे आगा सनाब्दी जिन्होंने बीसीसीआई बनाया, आसमान पे ले गए, वो कैसे लेके गए, मैंने उसको बहुत क्लोजली स्टडी किया उनको, मैंने उनकी हर मैनेजमेंट प्रैक्टिस को। वो क्या करते थे, जहाँ अच्छी रिसोर्स मिलती थी उसको हायर करके अपने हेड ऑफिस में रख लिया करते थे, और डिफरेंट सेक्शन से बस बैठे रहो, ये भी देखो वो भी देखो, ट्रेनिंग चल रही है और सीख रहे हैं और बैठे हुए हैं, गप मार रहे हैं, रिलेशनशिप डेवलप कर रहे हैं। उसके बाद एकदम वो कहीं जाते थे, 5 ब्रांचेस खोल आते थे, तो पीछे टीम तैयार होती थी, वो एचआर को बोलते थे कि यार इस ब्रांच के लिए टीम भेज दो, वो टीम, तो उनको जो स्केलेबिलिटी की आज जो हम बात करते हैं, जो अच्छे कामयाब लोग थे जिनको हम भूल गए हैं, उन्होंने स्केलेबिलिटी के लिए जो टूल्स यूज किए थे वो इसी तरह के थे, कि कीप योर मैन पावर रेडी। बैंकिंग में खास था कि मैन पावर चाहिए, कीप इट रेडी, जाओ देखो जहां एक्सपेंशन मिलती है, लाइसेंस मिला, 5 ब्रांचें खोलो। एंड व्हाट ही यूज्ड टू डू, इंग्लैंड में अगर उन्होंने अपनी ब्रांच खोली है ना, तो जिस काउंटी में खोली है, उस काउंटी का जो शहजादा है, उसका घर किराए पे लेके अपने मैनेजर को देंगे तो काउंटी का बजट तो पहले आ जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बजट आपके पास आ जाएगा, बैंक में आ गया। अब वो शहजादा क्या आपका मालिक मकान है, तो आप उसको इनवाइट भी करते हो, आता भी है, और 10 दोस्तों को भी लेके आते हैं, आपका बिजनेस ग्रो कर जाता है। यही फॉर्मूला गोरों को पसंद नहीं आया, तो उन्होंने उनको उड़ा दिया। अच्छा, फिर our faculty will also be attached with our students in the process to supervise and guide, जो भी वहाँ पे वो सीख रहा होगा, क्योंकि हमने उसको ये नहीं कि आपके ऊपर छोड़ देना है, उसने एक दिन कैंपस आके अपनी फैकल्टी जो भी होगी उसको बताना होगा, डिस्कस करना होगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट सेकंड था, इसको मैंने स्किप कर दिया है, कि वो आपकी कल्चर वगैरह को देख लेंगे। उसके बाद फ्रेश आई रिव्यू ऑफ योर प्रोसेसेस टू ऑप्टिमाइज योर प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स। टीचर भी देख रहा होगा, स्टूडेंट भी देख रहा होगा, और कुछ चीजें होंगी आपको फीडबैक बड़ा दे रहा होगा। कई दफा मासूमियत में गलत फीडबैक भी मतलब अपनी समझ बयान कर रहा होगा, आपको पता होगा, बेचारे को भी पता नहीं है, लेकिन कई दफा क्या होता है, उससे कोई एक आध बात टीचर से वो सुन के आ जाएगा, जो आपको कहेगी यार ओके लेट्स टेक अ लुक एट दैट साइड आल्सो, फॉर एग्जांपल। इसके बाद एट द एंड ऑफ द प्रोसेस दे मे जॉइन यू एज अ नॉलेजेबल, एक्सपीरियंस एंड वर्क रेडी ग्रेजुएट्स। आपको चाहिए वर्क रेडी ग्रेजुएट्स, प्लग एंड प्ले। तो प्लग एंड प्ले ग्रेजुएट्स आई थिंक विल बी वेरी यूजफुल। और आपने स्केल अप करना है तो एकेडेमिया से अच्छा पार्टनर ही कोई नहीं होता स्केल अप करने के लिए। बिल्कुल ऐसी है जी, आगे चलें।
अच्छा, कैपेबिलिटी एनहेंसमेंट जो है ना, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो हमने स्टडी किया और वूका टाइम्स में, कि जो क्रू जो आपके साथ आपकी कंपनी को चला रहा है, जिसको कह रहे हैं बोट को एनर्जाइज कर रहा है, एंड यू आर सेलिंग थ्रू दिस डिफिकल्ट टाइम, चॉपी वाटर्स हैं और आगे भी नहीं पता, अनचार्टर्ड ओशन है कि किधर जाना है किश्ती को लेके, क्या होना है। ये पता है कि अभी हवा बड़ी मुवाफिक है और हम बड़ी तेज स्पीड से जा रहे हैं और हम बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन फिर 2020 एकदम आ जाता है बीच में तो देन यू नीड अ फॉल बैक कि यार एकदम अगर झटका आता है, कोई हाई वेव आ जाती है, हाई टाइड आ जाती है, तो फिर यूएमटी इज देयर टू प्रोवाइड यू वेरी स्पेसिफिक लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। वो हम कंटिन्यू करेंगे। इसको बोलते हैं कैपेबिलिटी बैंक ऑफ योर करंट एम्प्लॉइज, जो है उसको बढ़ाएंगे इन टर्म्स ऑफ देयर सॉफ्ट स्किल्स, देयर टेक्निकल स्किल्स पे भी हम बात करेंगे उनको, और उनको लीडरशिप, how to negotiate, how to talk, how to present yourself, how to go to a client जो आपके साथ काम ही नहीं कर रहा, आपके कंपेटिटर के साथ काम कर रहा है, and impress him in a way कि क्या यार ये इस बच्चे के साथ काम करना है, इसको काम दे दो, 30% शेयर दे दो उसको, बस दे दो, वो पूरा बिजनेस ना खाने जाए, 10%, 5% जो भी मिलता है, एटलीस्ट एक नया क्लाइंट खुलेगा, एंड देन यू बीट योर कंपटीशन थ्रू योर सर्विस। और वो सर्विस क्या है कि आपकी टीम कितनी को गियर्ड अप है टू फाइट दैट आउट। ये इसकी थॉट्स थे जो आप सब शेयर कर रहे हैं। आगे चले, और ये हमने सक्सेसफुल कंपनीज को और बहुत सारे लोगों से बात करके ये सब चीजें लिखी हैं। अच्छा, फिर एक हमारा ना इनोवेशन कैपिटल डेवलपमेंट फोरम है, ये हमारा एक थिंक टैंक हमने बनाया जिसमें इंडस्ट्री, एकेडेमिया, गवर्नमेंट तीनों को हम एंगेज करके सेशंस करते हैं। अब आपको याद हो, इसमें हमने आईटी पॉलिसी के ऊपर ही पूरा सेशन रन किया था और हमने एक पूरी बुकलेट बनाई हुई है जो अभी हमने बस शेयर करनी है। वी आर वेटिंग कि किसको दे। तो इसमें जो आईटी इंडस्ट्री को प्रॉब्लम आई टैक्सेशन की, उनको प्रॉब्लम आई टर्नओवर टैक्स की, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, और बजाय इसके कि उनको गवर्नमेंट हेल्प करती, वो उन्होंने कहा यार ये इनको पकड़ो, इनसे पैसे लो। अच्छा, एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि लोगों ने पैसे बाहर रखने शुरू कर दिए, दुबई मूव कर गए पाकिस्तान से बहुत सारे लोग, उससे ऑपरेटिंग कॉस्ट ऊपर चली गई, लेकिन आपका इतना बड़ा पैसा वो जो रेवेन्यू आ रहा है उधर से आप काट रहे हो। तो अब इस फोरम पे उस चैलेंज को एड्रेस करना है। तो पहले डायग्नोस्टिक लैब, जिसको हम रेड लैब बोलते हैं, डायग्नोसिस ऑफ द प्रॉब्लम, कि इससे क्या हो रहा है, ठीक है, दुनिया में क्या ट्रेंड्स है, इंडिया में क्या हो रहा है, बाकी मुल्कों में क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं। उसके बाद एक हमारा होता है उसमें ग्रीन सेशन, जिसपे फिर हम कहते हैं ओके अगर ये प्रॉब्लम्स हैं और इंडस्ट्री के 3 लोगों ने एंडोर्स कर दिया ये प्रॉब्लम्स हैं, तो उसका हल क्या है, वो हल भी सजेस्ट कर दिया, वो ग्रीन सेशन है। उसके बाद ब्लू लैब्स हैं, ब्लू लैब में फिर हम एक्शन प्लान बनाते हैं और हम स्टूडेंट्स को भी ऑन बोर्ड ले आते हैं कि ओके अगर ये हल है तो किसकी क्या जिम्मेदारी है, किसने क्या करना होगा कि ये चीज पाए तकमील तक पहुंच जाए। और ये डॉक्यूमेंट कंपाइल करके आप फिर, हमने एफपीसीसीआई को काफी सारे डॉक्यूमेंट्स दिए और एसएमई पॉलिसी बना के दिया। हमने आईटी का डॉक्यूमेंट कुछ बड़ी कंपनीज के साथ, एक कंपनी है जिसका $650 मिलियन टर्नओवर है और माइक्रोसॉफ्ट का पार्टनर है, उसके सीईओ को हमने दिया एंड पीयर रिव्यू के लिए कि आप कमेंट दो। तो देन ही वांटेड टू मीट अस और बातें हमारी चली चीजें। तो और पूरा जो डॉक्यूमेंट है वो तो 8 वॉल्यूम्स के ऊपर है, ठीक है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज, इससे क्या होता है फिर आपकी प्रोफाइलिंग, देखो आपने एक सक्सेस देख ली है ना, अब आप सुबह से शाम तक इस काम में बैठे रहोगे, यू आर मेकिंग गुड मनी माशाल्लाह, गुड लाइफ, गुड डिनर, गुड कार, गुड हाउस, एवरीथिंग ग्रेट। लेकिन फिर इसके बाद मेंटल आउटलुक थोड़ा सा ग्रोथ ओरिएंटेड होता है, जहाँ पे यू शुड बी विजिबल इन इस्लामाबाद, इन पॉलिसीज, आपके नाम से चीजें जा रही हो, कोई मीटिंग्स अरेंज हो रही हो जो हम करेंगे और उस पर आपको एज अ गेस्ट इनवाइट किया हुआ है। तो ये वो फोरम है जहाँ पे आप अपने प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू एफबीआर, रिलेटिंग टू एसईसीपी, रिलेटिंग टू द बैंक्स, रिलेटिंग टू द गवर्नमेंट, जितने भी चैलेंजेस हैं यू कैन एड्रेस दैट, ठीक है। आगे चले, क्यों देखिए गवर्नमेंट को बताना जरूरी होता है, गवर्नमेंट का कसूर नहीं होता, गवर्नमेंट को सही बात ही नहीं बताते ठीक है, सही बात है, ऐसे ही है। गवर्नमेंट को कौन बता रहा है, टेक्नोक्रेट नहीं बता रहा, आप नहीं बता रहे, जो सफर कर रहा है उसको ब्यूरोक्रेट बता रहा है। ब्यूरोक्रेट ने कभी आईटी की कंपनी चलाई है तो उसको पता होना यार ये कैसे होता है। दैट इज अ चैलेंज। फिर ये अदर इंपेरेटिव है टू मेक सस्टेनेबल बॉन्ड, इस पे हम क्या कर सकते हैं, आपकी ब्रांड एक्टिवेशन, आपका हम ब्रांड अगर डिपेंडिंग अपॉन आप क्या बेच रहे हो, बहुत सारे हमारे बच्चे हैं
एलमनाई हैं, एलमनाई ने अपने स्टार्टअप शुरू किए हैं, बिजनेस शुरू किए हैं, आपको वहाँ पे हम कनेक्ट कर सकते हैं। और बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स में आपको हम ला सकते हैं कि आप रोड मैप ठीक कराएं, बताएं हमें कि हम क्या पढ़ाएं बच्चों को। और आपका सुपरवाइजर एक हम ले सकते हैं फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में, एक एकेडमिक होगा, एक इंडस्ट्री का होगा। वो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि दे और कौन सी प्रोडक्ट पे काम करना है वो भी आप बताएं, प्रपोजल अप्रूव करें, ताकि उसकी आगे कोई फायदा हो बच्चे को भी, आपको भी हो। फिर सीईओ टॉक्स हैं, आपको बुला, जैसे अभी आपके साथ हमने एक लीडरशिप टॉक्स का फोरम किया है, इसमें फिर आपको सीईओ टॉक्स के लिए बुलाएंगे। उस पे हम ये बातें नहीं कर रहे होंगे, उस पे आपका हम माइंड ले रहे होंगे, आपकी थॉट्स, आपकी सोच क्या है, आपकी विजन क्या है और क्यों है, हाउ टू टेक पाकिस्तान फ्रॉम फैक्टर ड्रिवन टू आइडिया ड्रिवन इनोवेटिव इकोनॉमी। ठीक है, अब एक फेसबुक ही है, वो पूरे पाकिस्तान का कर्ज वापस कर सकता है यू नो तो आइडिया ड्रिवन इकोनॉमी और सर्विस इंडस्ट्री, इसी में आप हो। तो फैक्टर ड्रिवन से आइडिया ड्रिवन पे जाना है, तो वो टॉक्स हैं इसमें, सीईओ टॉक्स में। देन एमओयूज, वो मुईद आपसे बात कर लेगा कि हम किस तरह की चीजें आपसे शेयर भी कर लेगा, आपकी कोई थॉट्स आप बता देना। वी कैन हैव स्पेशल डिस्काउंट पैकेजेस फॉर योर एम्प्लॉइज ऑल्सो, वो भी हम देख सकते हैं। हमारे जो मैगजीन है उसमें आपके इश्तिहार चले जाएंगे। गेस्ट स्पीकर सेशंस में डेफिनेटली आपको हम बुलाएंगे, कम एंड शेयर योर एक्सपीरियंस। फिर हमारा एक हायर टैलेंट फार्मिंग प्रोग्राम है, इस पे काफी इसकी डिटेल है, वो विल हैव अ सेपरेट सेशन ऑन दैट। फिर एक हमारा इनोवेशन चैंपियंस अवार्ड है, ये हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग एक प्रोग्राम है और पूरा बना हुआ है इसमें ये अभी हमने लॉन्च नहीं किया है, इंशाल्लाह ऑन द राइट टाइम करेंगे। इस पे हम कंपनीज को मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई आपको भी इनोवेशन की तरफ आना है, और हम उनको कह नहीं रहे, देखो अगर मैं किसी को बोलूँगा आप इनोवेटिव नहीं हो, आप ये नहीं कर रहे, तो जाहिर लोगों का थोड़ा सा इशू ईगो का भी आता है, तो वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट। हम उनसे क्या कर रहे हैं, वी आर गिविंग देम क्वेश्चनियर कि इसमें क्या कर रहे हो, उसमें क्या कर रहे हो, उसमें क्या कर रहे हो, रेट कर दो, और आपका यूएसपी क्या है, ये ऐसी 3 चीजें बताएं जो आपने की है वो, और इसका हम एक बड़ा प्राइज रखना चाहते हैं फॉर द विनर, तो उसके ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं, इंशाल्लाह विल डू इट समडे। आगे चले, तो UMT at a glance, ये हम basically we have a purpose-built campus. ये probably 200 PhDs from renowned universities, 25,000 students हैं, 20,000 से ऊपर alumni हमारे, कोई 45,000 हैं, और अगर हम TKS स्कूल और ILM कॉलेजेस को डाल दें तो अपनी लाख से भी ऊपर जाते हैं, लेकिन ये तो हुए हैं जो कि UMT रिलेटेड है। Then we have international linkages with different institutions, universities. We have students from overseas countries, उनको भी आप ले सकते हो जो brand ambassador, they can go to their country after graduation, promote your company, उनको आप तैयार करो अपने पास, 3 years 1 year आपके पास है, आप उनको तैयार ही इस तरह करें कि सऊदीया में, जद्दा में, दुबई में, अफ्रीका में, कहीं पे भी जहाँ आप समझते हो जाके आपकी ब्रांच खोलें और आपकी कंपनी को आगे लेके चलें। We have a lot of books in library, journals and magazines हैं, everything is there, labs हैं, we have, हमारी IPC लैब तो जो कंप्यूटर्स की है बहुत ही बड़ी है। तो ये एक हमारी फर्स्ट ड्राफ्ट है प्रेजेंटेशन का, और ये आपको सिर्फ हमने दिखाया है नेक्स्ट स्टेप्स के लिए फॉर डिस्कशंस एंड टॉक्स, एंड होपफुली इंशाल्लाह ये आप सब शेयर कर लेंगे। उसके बाद देखिए हम कहाँ कहाँ कोलैबोरेट कर सकते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड, वो ना साथ चलेंगे तो कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे, इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। फर्स्ट स्टेप, वो एक नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में एक बच्चे से पूछा कि उसने कहा था चांद पे जाके a small step of a man and a big giant leap for the mankind। तो ये वही है कि पहला कदम लेना होता है तो फिर जाइंट लीप की तरफ भी आप चले जाते हो। तो दिस इज लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट, ये प्रेजेंटेशन आपसे इंशाल्लाह शेयर हो जाएगी, इसको आप देखिएगा, और व्हेनेवर यू हैव फ्री टाइम बताइएगा, तो फिर विल डिस्कस इट फर्दर, और स्पेसिफिकली देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। उस पर मुईद आपसे MOU ड्राफ्ट भी शेयर कर लेगा, उसमें आपने जो प्लस माइनस करना है आप देख लेना, एंड टेक योर टाइम, कोई बहुत जल्दी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन इफ यू वांट टू स्टार्ट नाउ वी आर रेडी, हम तैयार हैं। So thank you very much for your time. Moeed, anything? Sir, before we close, we have Miss Kola Zaman from East Park. I think he wants to say something or include anything. Great. Welcome.
Assalamualaikum everyone. Okay, first of all, I would like to say that we are truly humbled as a team to be part of this discussion. And it was something I am really impressed by the initiatives that you along with your team are taking for your students. The kind of, proposals you have come up, they are amazing. But you know what, यहाँ मैं सबसे पहले जो हम बड़ी बातें कर रहे हैं, उससे पहले ना मैं बहुत बिल्कुल बेसिक लेवल की कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगी आपके साथ, जो शायद ने स्टूडेंट्स के साथ करें, that we face while recruiting students from different universities. Okay, good. So the thing is कि for most thing, ये बातें सारी कहते हैं ना किताबी बातें हैं, सबको पता है, but ये कि these are the things that needs to be focused on. Number one, जो चीज मैंने की है, since we have a very good relationship with UMT, आप लोगों का फॉलोअप बहुत अच्छा है, तो हम जनरली जो आप लोगों के बच्चों की सीवीज होती हैं, we do consider that. The next thing is जो सीवीज आती हैं ना, सबसे पहले थोड़ा सा उन पे फोकस करें. They should be properly developed, जिसके अंदर उनका कोर स्किल, क्या करते हैं बच्चे, एजुकेशन लिख देंगे, प्रोजेक्ट्स लिख देंगे. सबसे पहले कोर स्किल, जैसे अभी मिस्टर उमैर ने मेंशन किया कि उनकी कोर स्ट्रेंथ क्या है, किस चीज के ऊपर उनकी ग्रिप है, कमांड क्या है. सेकेंडली उनके सॉफ्ट स्किल्स वो कौन से हैं, वो चीजें मेंशन करें. एंड थर्डली मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि वो उसको कैसे लेआउट कैसे उसका क्रिएट करते हैं. ठीक है. देन कम्स आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जहां मैंने देखी है कि मेजॉरिटी बच्चे, I don't want to take names of big universities, क्योंकि वो obviously competition के अंदर आ जाती है, वो आ जाता है आपका communication. Feel free to talk. Okay. Like LSE LUMS, ठीक है. मैं आपको honestly बताऊं, UMT पंजाब यूनिवर्सिटी का बच्चा, they are more sharp than LSE LUMS people. ठीक है. The only thing, the edge that LSE LUMS people have is that they have such good communication skills, they have such good negotiation skills. ठीक है. इसकी वजह से ना वो क्या कहते हैं, एक नंबर आगे ले जाते हैं. और ये चीज है जो रिक्रूटमेंट में जो हम लोगों ने एज ए टीम HR ने एक्सपीरियंस किया है कि CS के बच्चों के कम्युनिकेशन के ऊपर ना बिल्कुल काम नहीं हुआ था. Like they don't even have a know-how of basic tenses. ठीक है. तो ये चीज मैं कहूंगी कि चाहे इम्प्रॉम्प्टूज इंट्रोड्यूस करें आप लोग, बेसिक क्रिएटिव राइटिंग के या बेसिक आप कह लें कि उनके प्रेजेंटेशन के, इस तरह के कुछ आप लोग लेआउट क्रिएट करें जिससे उनका स्टेज फियर और जिससे उनका जो कम्युनिकेशन स्किल है ना वो एनहांस हो. एक्सीलेंट. ठीक है. इस पे बहुत फोकस करने की जरूरत है. सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो चीज आती है वो आती है बिजनेस राइटिंग. मैंने एम्प्लॉयज में कि दे हैव पुअर बिजनेस राइटिंग स्किल्स. उनको ग्रीटिंग नहीं आता, उनको सैल्यूटेशंस नहीं करने आते, उनको मेन मैसेज कन्वे नहीं करना आता, या लंबी कहानियां लिखी होंगी, या बिल्कुल छोटे जो कहते हैं ना सेंटेंसेस में उन्होंने बात पूरी कर दी होगी. एंड इट ऑल a very vague and ambiguous sort of a message to the client. ठीक है. तो बिजनेस राइटिंग के ऊपर मुझे लगता है कि बहुत फोकस होना चाहिए. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली लास्टली बिजनेस एथिक्स, बिजनेस एटिकेट्स, वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज. देखिए ये तो वो बातें हैं जो खैर इस्लामियत में भी सिखाई जाती हैं, बट आई थिंक ये जो एटीट्यूड वैल्यूज वाली बात है ना, ये हम लोगों को एज अ सब्जेक्ट भी इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ जब हम एज एन एम्प्लॉयर हायर कर रहे होते हैं ना, हम उस बच्चे का एटीट्यूड, उसका कंपोजर, उसका बैठने का स्टाइल, उसका बात करने का स्टाइल, उसका सलाम करने का स्टाइल, ठीक है, कितना वो हम्बल है, कितना ग्राउंडेड है, कितना कॉन्फिडेंट है, हम ये चीजें देख रहे होते हैं. ठीक है ना. स्किल बाद में आएगा, वो तो जब आएगा रियल वर्ल्ड में, रियलिटी में आएगा, वर्क प्लेस पे आएगा, तब पता चलेगा. बट ही हैज टू सेल हिमसेल्फ और हरसेल्फ राइट ऑन द ग्राउंड, जहां वो इंटरव्यू दे रहा है. और वहां आपका कम्युनिकेशन, आपकी वैल्यूज, आपका प्रॉपर, आपकी पर्सनालिटी अलॉन्ग विद योर प्रॉपर अटायर. ठीक है ना. जैसे भी आपने मेंशन की थी कि वो जो आपको कोई स्टूडेंट किया, उसने जीन्स और जॉगर पहने. दिस इज द थिंग दैट वी, ये चीज हम देखते हैं. ये बात नहीं कि हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं किसी को, बट वी वांट देम टू बी प्रॉपर्ली ट्रिम्ड, प्रॉपर्ली ड्रेस्ड अप, कि भाई हमारी कंपनी का इमेज जा रहा है. इफ ही इज गोइंग टू आवर क्लाइंट, इफ ही इज रिप्रेजेंटिंग अस इन एनी यूनिवर्सिटी, ही इज रिप्रेजेंटिंग अस. ठीक है ना. तो ये एक्सीलेंट फीडबैक, आई रियली अप्रिशिएट. देखिए कैंडिडेट टॉक से ही सारे चीजें का पता लगता है और इसी से इंसान हल करता है.
अच्छा, लकीली वी हैव मिस सारा इकबाल खान विद अस हियर। सारा, आप एक तो ये बातें वही हो गई जो आप कर रही थी और बच्चों को आप करती भी रहती हो, तो एक आप अपनी डेफिनेशन ऑफ अ गुड मार्केटेबल ग्रेजुएट बताओगी जो जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, फिर इनको हम इनवाइट करेंगे और इम्पैक्ट बाइट्स इस इंटरव्यू की आपने लेके ये मिस खोला की बातें खास तौर पे आपने जो है ना शेयर करनी है स्टूडेंट्स के साथ, और मेरे साथ कल डीन एसएसटी होंगे तो उनको भी फिर मैं ये डॉक्यूमेंट दे दूंगा। थैंक यू खोला। और कोई और कमेंट आपका? नहीं, दैट्स ऑल। क्योंकि मुझे लगता है कि रिक्रूटमेंट की जो ये कुछ टिप्स है ना, ये इतनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहते हैं ना कि वो जो पहला इमेज है, जो पहला इंप्रेशन जा रहा होता है, समहाउ शायद कह लें कि जजमेंटल तो नहीं मैं कहूंगी, लेकिन समहाउ हम इतने तो इंटरव्यूज कर रहे होते हैं, तो वो जो पहला है ना, हम उसके ऊपर चले जाते हैं, समहाउ हम अपनी इंट्यूशन पे चले जाते हैं। तो ये जो 3-4 ठीक है, हाँ, ये पॉइंट वेल टेकन, मैंने सारे नोट्स भी ले लिए हुए हैं आपकी बातों के। सारा, आप बताएंगी कि वो जो आप गुड, मैं खोला आपकी साथ कंटिन्यू करूंगा, आप जरा गुड मार्केटेबल ग्रेजुएट की जो आप जिस पे काम कर रही हो उसकी डेफिनेशन क्या है, कुछ बताएंगी आप? इसे शेयर कर सकती हैं क्योंकि दिस इज द बेस्ट फोरम। I'm sharing my screen. ओके, ग्रेट। मिस खोला, ये एक है जिस पे हम काम कर रहे हैं, आपके पॉइंट्स वेल टेकन, एंड ये हमारी डेफिनेशन ऑफ अ गुड मार्केटेबल ग्रेजुएट है। The specific minimum drivers to be embedded in the academic journey are as follows। ये हम कर रहे हैं इसके ऊपर, और आपका फीडबैक आ गया, हमें मजीद हमारे ख्यालात को रोकियत मिल गई कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक। ये सब्जेक्ट मैटर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी विद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑफ डोमेन रिलेटेड सॉफ्टवेयर, जो भी आप इंजीनियर हो, आप हेल्थ साइंसेस के हो, आप सॉफ्टवेयर वाले हो, एंड एप्लीकेशंस, क्योंकि हर डोमेन की एप्लीकेशंस बहुत आ गई हुई हैं, along with the ability to go for multidisciplinary collaboration। ये बड़ा जरूरी है। अब देखें, मैं प्रोग्रामर हूँ और फॉर एग्जांपल, और मुझे फाइनेंस का भी कुछ पता होना चाहिए, मार्केटिंग का भी पता होना चाहिए, ताकि मुझे टाइमलाइंस की मैं रिस्पेक्ट कर सकूं, मैं कोलैबोरेट कर सकूं, मैं जो मेरा क्लाइंट सर्विस वाला है उससे मैं सही कोलैबोरेट करके सही इनपुट ले सकूं ताकि प्रोडक्ट पे काम कर सकूं, टू आर्किटेक्ट इनोवेटिव एंड क्रिएटिव सॉल्यूशन टू एनी गिवन प्रॉब्लम। ये जो भी वो भी बात कर रहे थे उमैर साहब, उनका भी पॉइंट इसमें आ जाता है। तो हमें देखिए कॉन्फिडेंस मिलता है इंडस्ट्री से बात करके कि हमारा ट्रैक ठीक है, एंड कम्युनिकेटेड इन इंग्लिश लैंग्वेज विद गुड प्लीजिंग मैनर एंड पर्सनालिटी। तो आई थिंक इसमें ये पॉइंट्स अगर सारा कामयाब हो जाती हैं तो मिस खोला के और मिस्टर उमैर के जो कंसर्न्स हैं वो आप एटलीस्ट यूएमटी के बच्चों से निकाल देंगी। अच्छा, इसकी आगे पूरी स्ट्रेटेजी भी इन्होंने बनाई हुई है, थोड़ा सा आप क्विक रन डाउन कर दें। ये थोड़ा है कि कैसे करना है, क्या करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स पे, फिजिकल डोमेन नॉलेज, रोल मॉडल इन देयर डोमेन भी देखना जरूरी है, एबिलिटी टू क्वेश्चन एंड क्रिटिक, इनोवेटिव माइंडसेट, एबिलिटी टू आर्किटेक्ट सॉल्यूशंस, कैसे करना है वो उसका भी है, टीम बिल्डिंग, क्योंकि आपने कोई भी प्रोडक्ट बनाना है वो टीम ने इकट्ठे होकर ही काम करना होता है। बहुत सारे बच्चों में आजकल प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो दूसरे के साथ काम नहीं कर सकते। पर्सनल ब्रांड मैनेजमेंट पे हमारा एक 7 लेक्चर्स का पूरा वर्कशॉप होता है और जिसे हम पूरी वर्कबुक करवाते हैं, और ये नेटवर्किंग एबिलिटी ये आपको जरूर चाहिए बिकॉज बिजनेस को डेवलप करना है। अभी तो ये उमैर साहब खुद ही कर रहे होंगे, लेकिन अगर टीम नीचे अच्छी साथ हो, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत अच्छी टीम है, नेटवर्किंग भी कर लेती है, वही तो उसको हेड कर रहा है इस वक्त, एंड सारी बात भी कर लेते हैं, प्रेजेंट भी अच्छा कर लेते हैं, एंड स्ट्रॉन्ग पर्सनल एथिक्स एंड इंटेग्रिटी, ये leadership potential, fit with the company culture, social outlook and objectives, तो फिर level of maturity, enthusiasm and drive, आगे चले, adequate general attitude towards lifestyle, health, wellness and mindfulness, मतलब integrity, आगे चले। तो ये एक पूरा हमने कोर्स बना के we are running it। आगे चले जरा, थोड़ा सा ये लास्ट लाल वाला मैं पढ़ना चाहूंगा कि नीचे It is recommended that learning ecosystem should inculcate the above ingredients, and the graduates and participants should take personal responsibility। ये हम कह रहे हैं कि बच्चे जो है ना खुद जिम्मेदारी लें, that they have it all in them। उसके बाद कोई भी एम्प्लॉयर, जैसे आपने सारी जो बातें की है, मैंने सारे पॉइंट लिखे भी हैं यहाँ पे, और मैं मैचिंग कर रहा था माइंड में
और मुझे एकदम ख्याल आया कि ये बातें हम भी शेयर करें आपसे। अच्छा, अब है हमें भी कॉन्फिडेंस आ गया कि इंडस्ट्री भी यही है, ये ठीक है ना, ये फायदा होता है आपका। आगे चले नीचे। बात खालिद ये साहब, बात फिर ये ना आ उस जाती पे, जी है, प्लीज बोलें। मैं ये कह रही हूँ कि बात ये आ जाती है कि जस्ट मेक इट अ नॉर्म इन योर हाँ, क्लासरूम्स, they communicate in English, because unless you practice it now you won't be able to speak it. You अच्छा just आप ये have to बताएं practice कि आपका culture. आपका हमने इंटरव्यू रिकॉर्ड करना है मोहित, आप इनका इंटरव्यू रिकॉर्ड करो और स्टूडेंट से शेयर करो प्लीज। मिस खोला जमान का इंटरव्यू रिकॉर्ड करें और स्टूडेंट से शेयर करें। ये सारी बातें उसमें 15 मिनट का आप इंटरव्यू टाइम रखें ताकि बुलेट पॉइंट्स हो और बच्चों को समझ में भी आ जाए और वो समझ लें कि देखो आईटी इंडस्ट्री क्या कह रही है। और ये हमने एसएसटी के बच्चों से शेयर करना है। उसके बाद इंशाल्लाह जब कैंपस खुलता है एज अ गेस्ट स्पीकर भी बुलाएंगे और इनको हम व्हाट आर द स्किल्स रिक्वायर्ड टू गेट द बेस्ट जॉब, और वो भी हम कुछ कर लेंगे इंशाल्लाह। तो आप इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लो इफ यू वांट, आप सारा से रिकॉर्ड करवा लो जैसे आपको सूट करे। आई लीव इट टू यू। I have no issues with anyone. I have no issues. ग्रेट। तो ये आपका इंटरव्यू रिकॉर्ड करते हैं और ये बच्चों को हम चलाते हैं। और ये जो उमैर जमान साहब के साथ हमारी बातचीत सारी हुई है, ये तो हम इसको एडिट करके और एक फॉर्मेट में लाके मोहित ये भी आपने अपलोड करना है हमारे वेबसाइट पे, ताकि ये भी हम शेयर करें कि इंडस्ट्री क्या कह रही है, क्या उसका आउटलुक है। और इस पे टीम से जो भी आपको हेल्प चाहिए हो यू कैन एंगेज एनीबॉडी और इसको इफेक्टिव करें। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम रियली ग्रेटफुल टू मिस्टर उमैर एंड खोला फॉर योर कैंडिड टॉक एंड कमेंट्स। इसी तरह ना योर फीडबैक विल हेल्प अस इम्प्रूव, कैंडिडली स्पीकिंग। और इतना अच्छा फीडबैक हमें कैंडिडली मिलेगा तो हम भी उतने ही जोर से आगे एकेडमिया में भी पिच कर सकते हैं। एंड नाउ वी हैव सपोर्ट विद अस, और हम जब जाके बात करेंगे आपको लेके जाएंगे साथ इंशाल्लाह। आई एम श्योर इट्स गोना मेक अ डिफरेंस। थैंक यू वेरी मच। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आप लोगों में किसी का कोई पॉइंट हो तो प्लीज फील फ्री टू टॉक नाउ। जी सर, एक तो ये कि आई रियली अप्रिशिएट, और ये मैं अगर आपको इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से बताऊं तो मैंने पूरे लाहौर में 2 यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें इतनी एक्टिवनेस और इतनी प्रोएक्टिवनेस देखी है। दैट वन इज यूएमटी एंड द अदर वन इज एफसी यूनिवर्सिटी। सो आई थिंक ये वो चैलेंज है जो कि बहुत सालों से लोग डिस्कस जरूर कर रहे थे लेकिन कर कोई नहीं रहा था, कि कोलैबोरेशन बिटवीन इंडस्ट्री एंड द यूनिवर्सिटी। सो आई थिंक ये एक कांग्रेचुलेशन। मैं इंशाल्लाह अगर मुझे नेक्स्ट चांस मिलता है तो स्टूडेंट्स को डायरेक्टली भी बताऊंगा कि आप लोग किस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो कि प्रॉब्ली हमने इंडस्ट्री में आगे खुद सीखनी पड़ी है हमें, ठीक है। और मेरे बल्कि जो आपके जो सीनियर टीचर्स हैं, यासिर दानियाल हैं, नबील साबिर साहब हैं और शोएब फारूक साहब हैं, ये मेरे भी टीचर हैं। ये बड़े जबरदस्त टीचर्स, हमारे बेस्ट टीचर्स। पर्सनली मैं उनके साथ हमारे टर्म्स हैं, बल्कि नबील साहब ने पिछले दिनों बहुत अच्छा एक स्टूडेंट हमें रेफर किया, मतलब ही द जेम। वो उसके ये था कि वो मतलब ही इज आउटस्टैंडिंग, तो वो माशाल्लाह हमारे साथ चल रहा है और बहुत हम इस तरह की टीम चाहिए। नबील साबिर बच्चों की ऐसी ओनरशिप लेता है कि मतलब इट्स अमेजिंग, और उनके पीछे यू नो ही विल मेक देम डू थिंग्स जो वो सोचते भी रहते हैं। और जो उसने अपनी पीएचडी जिस डोमेन में की है कि उसने साइन लैंग्वेज को कन्वर्ट कर दिया, एंड दैट इज माशाल्लाह अमेजिंग। वो तो नोबेल पीस प्राइज का हकदार है मेरे नजदीक। तो नबील इज अ ग्रेट गाय। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो इंशाल्लाह नहीं, हमारा तो यूनिटी से ताल्लुक है, तो बाकी आप जब कहेंगे तो वी आर ओपन, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। जहां आपको हमारी सपोर्ट चाहिए हो इन एनी वेज तो वी आर अवेलेबल। वी आर ग्रेटफुल उमैर साहब। मोहित आपने ये प्रेजेंटेशन से शेयर कर लेनी है। जी सर। और उमैर साहब हमें आपने ना अब इस पे सोचना है, कोऑप प्रोग्राम पे, कंसल्टिंग, जो भी आपकी थॉट्स हो, जिस तरह हमारी खुल के बात हुई ना, बिल्कुल आपने कैंडिडेटली लिखना है, उसमें सोचना नहीं है। और वी लव क्रिटिसिज्म एंड वी लव ऑल द नेगेटिव टॉक्स जो भी हमें कोई देता है, बिकॉज उसी में से हम चीजें निकालते हैं और ठीक करने की कोशिश करते हैं अपने आप को। तो फील फ्री टू राइट एनीथिंग, ठीक है? थैंक यू वेरी मच फ्रॉम माय साइड। मोहित, बैक टू यू। जी थैंक यू वेरी मच उमैर साहब, स्पेशली आपके जो 2 लोग एचआर में जिन्होंने ज्वाइन किया, खासतौर पर मिस खोला और मिस आयशा। It was wonderful feedback from your end. तो इंशाल्लाह जैसे खालिद साहब ने बताया, we'll be having another session soon. I'll be sharing the presentation with you shortly. और इंशाल्लाह जो भी आपका फीडबैक है वो आप इन रिटर्न भी दे सकते हैं हमें। बाकी एग्जर्ट्स जो है हम इस सेशन से निकालेंगे
Miss Sara will do that, and inshallah हम वो excerpts भी आपसे share करेंगे. Not only with you, but we'll try to penetrate these excerpts in the faculty side as well. So I once again take this opportunity to thank you and your team. So inshallah, looking forward to have another session soon. Thank you very much. Thank you, Ji. Thank you so much for having us. Thank you so much. Thank you for being part of this session. Thank you very much. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam.